ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਰ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਲਚਲ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਔਰ 24 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਊਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ 24 'ਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 27 'ਚ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੇਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਦਲਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਦੂਜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ? ਇਹਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਬਕ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ 2007 ਤੋਂ 17 ਇਹ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਰੂ ਸੀ। 17 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਲੇਕਿਨ 22 'ਚ ਫਿਰ ਖੇਰੂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ 2014 ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸੈਂਡ? ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ।
ਨਾਲ ਦੇਵ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਵਗ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵਗ ਜਾਣਗੇ ਅੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ 11:15 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੀ ਹੈ ਤੜਕੇ ਦਾ ਮੁਜੱਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ, ਮਤਲਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਆਇਆ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ, 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਫੋਨ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਤੱਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ क्योंकि समर्थक ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕਰ 5:30 ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਦਲ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਵੀ 6 ਵਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ? 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਅਗਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤਸਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ
ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਗੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦੋਸਤ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਰਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 317 ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 317 ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 317 ਦਿਨ ਬੇहद ਔਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ 317 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਫੋਨ ਆਈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਫੜੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ 35 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੂਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਵੇਗਾ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। जी आगे जी बदल सर ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣੀ ਆ ਭਾਈ ਔਖਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। देखो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। जब भी डिक्टेटरशिप एक क्रांति आई। आज मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी और वो इस सरकार की जड़ें हिलाने बंद करा। मैं आज भी कहता हूँ कि कांग्रेस का वर्कर देखिए जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है और किस तरह से फर्क की फैली नहीं है तो पिघल जाएगा।
में है, बेड़ियों में। मैं कोई नहीं ला रहा, कुछ चीज नहीं रही कोई। उसके लिए भी है। आज लोकतंत्र बेड़ियों में, बेड़ियों में। पंजाब ढाल है, इस देश की ढाल। ढाल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है। जहां जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, लोकतंत्र नहीं। सेंटर की बड़ा आपकी कोई आगे क्या है? उसे दबाने के प्रयास में, क्योंकि कुछ किया नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमने शांत करना यार। जाना तेरा कमजोर करके शांत रहा यार, शांत रहा 2 मिनट। 70-75 साल पहले राहुल गांधी चट्टान की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो चट्टान की काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी आज लोकतंत्र की बेड़ियां काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह एक दहाड़ है, पूरे देश में दहाड़ है। उस सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब शेर दहाड़ता है तो अमेरिका, जर्मनी, पूरी दुनिया में वो आवाज हर तरह से गूंज रही है। डिबेट और डिसेंट, ये डेमोक्रेसी के एसेंस हैं। एसेंस कि तुमसे अगर कोई रग नहीं मिलती तो वो पार्लियामेंट में बोलेगा और बताएगा। ऑपोजिशन का रोल है ये। तुम्हारे शब्दावली, अरे मेरे दोस्त, तुमने क्या क्या नहीं बोला। फिर तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई कोई। कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्रंथ मानता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इक्वालिटी, सबका साथ और सबका विकास। कहने को तो यह है, पर क्या किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंची है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे। लोगों की ताकत लोगों तक नहीं, चंग पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है दोस्त। तानाशाह। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, पूछो जो न्याय है। न्याय एक ऐसी संस्था है, न्याय की संस्था, इलेक्शनों की संस्था, इलेक्शन कमीशन है। जो उच्च न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी संस्था है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, पीछे हो मित्रा, कोई रोवा नहीं, अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी जो कर रहे हैं पंजाब च थोड़े बच्चे वाली कर रहे हैं मित्रा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, देही दाते लाऊं। संस्थाएं, ये संस्थाएं पवित्र थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं चलाती हैं उन वैल्यूज को। वो है कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। वो संस्थाएं आज गुलाम हैं। वो संस्थाएं आज 2 लोगों की सुनती है, 4 लोगों की सुनती है, 6 लोगों की सुनती है, ज्यादा नहीं।
उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्डे बना दिया गया है और वो रबड़ के गुड्डे चाबी देके छोड़ दिए गए हैं। मैं घबराता नहीं हूं, मौत से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं, मेरी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी, छुट्टी लेता तो ये नहीं होता। मैं आज भी इनमें भगवान देखता हूं और मैं आपको कह रहा हूं, छाती पीछे चल, हाथ पासे हो। मैं आज भी कह रहा हूं कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। और आज अंबेडकर सर की फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हम परिवार हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर हैं हमारे, लेकिन हम परिवार की एकता में बंधे हुए हैं। उस परिवार की एकता को तोड़ा जा रहा है और उस परिवार की एकता का रखवाला राहुल गांधी है। मैं चट्टान की तरह इस मुसीबत के टाइम में हर कांग्रेस के वर्कर के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। खड़ा रहूंगा उस्ताद। और दूसरी बात, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है पंजाब में। बताएं पंजाब के लिए क्या किया है? हैं? कुछ नहीं। राष्ट्र धर्म यही कहता है कि पंजाब के लोगों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये सत्य बोले जाएं। जहां जहां माइनॉरिटी है, जहां जहां हिंदुत्व का एजेंडा चलता नहीं, कश्मीर में मुस्लिम भाई मुख्यमंत्री बनता है, यहां सिख मेजॉरिटी में तो सिख मुख्यमंत्री बनता है। जहां जहां पंजाब के लोग कहते हैं पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, पंजाब जीवे गुरां दे नाम। और वो गुरुओं के नाम जीने वाला पंजाब, उसके परिवार को तोड़ा जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है वोटों की पोलराइजेशन के लिए। मैं जिंदगी में एक बार मरूंगा, बार बार कायर मरते हैं, समझे नहीं? मुझे किसी भी जेल में डालो और मैं आज आपको कह रहा हूं, इतिहास गवाह है, 323 में आज तक 323 में किसी ने हफ्ता कैद नहीं काटी, हफ्ता कैद। और कभी आज तक रिव्यू नहीं हुआ। तो सिद्धू क्यों आया जेल में? एक मिनट, सिद्धू जेल में इसलिए आया कि वो संस्थाएं मेरे पूर्वजों ने स्थापित की थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया था, और वो संस्थाएं, उनकी इज्जत करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू इस जेल में आया, एक बार भी उफ नहीं की। हर रोज कोई ना कोई लोकतंत्र नहीं, षड्यंत्र होता था। आपके सामने ही आज क्या हुआ? सवेरे सरकार वेट कर रही थी कि टीवी वाले कब जाएं, सत्य सुनने का मादा नहीं। और ये लोग कब जाएं? कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बर्फ की डली नहीं है, पिघल जाएगा। खड़े हैं वो, आज भी खड़े हैं वो। दूसरी बात, नहीं, यहां आज की बात कर रहा हूं, पहले भी हुआ, छोड़ रहे हैं जी, मैंने कहा छोड़ दो। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं बारी मुख्यमंत्री कि जो सत्य की आवाज है वो बिल्कुल सही है। और मैं आज अपने छोटे भाई भगवंत मान को पूछना चाहता हूं, मैं उसको भगवंत मान को पूछना चाहता हूं कि बड़े दमगजे मारता था भाई तू, हैं? जब सत्ता में नहीं था तुझे किसी ने नहीं रोका, चुटकुले सुना, सपने बेचे तुमने, झूठ बेचा, तुमने पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया, और आज तुम एक अखबारी मुख्यमंत्री बन के रह गए हो, अखबारी मुख्यमंत्री। और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे। अरे सिद्धू एक मरवा दिया, तू दो और मरवा। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते। भगवंत मान की बात मैं कह रहा हूं ना, भगवंत मान साहब, मैं याद कराता हूं,
36,000 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਿਆਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੀ ਸਿਆਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਮੋੜਨਾ ਮਿੱਤਰਾ? ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ BSF ਕਿਉਂ ਆਈ, BSF ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਐ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ BSF ਖੜੀ ਹੈ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ BSF ਖੜੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੀਸ ਲਹਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤਈਓ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, MSP ਦੇਾਂਗੇ, ਸੀਸ ਲਾ ਲਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੀਸ? बरगाड़ी का इंसाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह लाया ਉਹਦੇ ਤੇ। बरगाड़ी का इंसाफ 24 घंटे में हो जाएगा। पैसे सुन ले मित्रा, तू मेरा छोटा भाई है भगवंत मान साहब, मैं सोचदा ही तेरा शेर वर्गा दिल हो, पर तू अज बड़ी छोटी गल की नवजोत सिद्धू लई। मैं कोई गल नहीं, तू मेरा छोटा भाई रहेगा हमेशा। सुन ले मित्र प्यारे 50,000 करोड़ किथे है? किथे है केजरीवाल साहब ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢੂ ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੂੰ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂ। 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲਤਾ। ਰੇਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 3700 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ 12,000 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ। ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੈ ਲੂ? ਸਾਰੀ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਜਟ? ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਧੂੜ 'ਚ ਯਾਰੋ ਤੂੰ ਟੱਟੂ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ, 30 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੱਪ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ MLA ਹੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀਜ਼ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਤੈਂ? ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਤੇ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਚੜਦਾ ਸੀਗਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ 25-30,000 ਕਰੋੜ ਚੜ ਗਿਆ। PSPCL ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾ। ਜਿੱਦਣ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਲੂ। ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਜਿਪਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ तमाम मुद्दे होण, ਤਾਂ हर एक मुद्दे के उपर जिहड़ी चर्चा हैगी
ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰੰਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਢੋਲ ਧਮੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲ ਨੇ ਉਹ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। मैं तो माड़ा पानी है वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। जब भी डिक्टेटरशिप एक क्रांति आई आज मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी और वो इस सरकार की जड़ें हिलाने बंद करा। मैं आज भी कहता हूँ कि कांग्रेस का वर्कर देखिए जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है और किस तरह से ठेली नहीं है लोकतंत्र बेड़ियों में मैं कोई नहीं ला रहा कुछ नहीं कोई उसके लिए भी है आज लोकतंत्र बेड़ियों में पंजाब ढाल है इस देश की ढाल पर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है जहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है लोकतंत्र नहीं सेंटर की बड़ा हाथी कोई आके उसे चबाने के प्रयास में क्योंकि कुछ किया नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमने शांत जाना तेरा कमजोर करके शांत रहा यार, शांत रहा 2 मिनट। 70-75 साल पहले राहुल गांधी चट्टान की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो चट्टान की काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है, आज शेर की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं।
उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी आज लोकतंत्र की बेड़ियां काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह एक दहाड़ है, पूरे देश में दहाड़ है। उस सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब शेर दहाड़ता है तो अमेरिका, जर्मनी, पूरी दुनिया में वो आवाज हर तरह से गूंज रही है। डिबेट और डिसेंट, ये डेमोक्रेसी के एसेंस हैं। एसेंस कि तुमसे अगर कोई रग नहीं मिलती तो वो पार्लियामेंट में बोलेगा और बताएगा। ऑपोजिशन का रोल है ये। तुम्हारे शब्दावली, अरे मेरे दोस्त, तुमने क्या क्या नहीं बोला। फिर तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई कोई। कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्रंथ मानता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इक्वालिटी, सबका साथ और सबका विकास। कहने को तो यह है, पर क्या किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंची है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे। लोगों की ताकत लोगों तक नहीं, चंग पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है दोस्त। तानाशाह। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, पूछो जो न्याय है। न्याय एक ऐसी संस्था है, न्याय की संस्था, इलेक्शनों की संस्था, इलेक्शन कमीशन है। जो उच्च न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी संस्था है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, पीछे हो मित्रा, कोई रोक नहीं, अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी जो कर रहे हैं पंजाब च थोड़े बच्चे वाली कर रहे हैं मित्रा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, देही दाते लाऊं। संस्थाएं, ये संस्थाएं पवित्र थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं चलाती हैं उन वैल्यूज को। वो है कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। वो संस्थाएं आज गुलाम हैं। वो संस्थाएं आज 2 लोगों की सुनती है, 4 लोगों की सुनती है, 6 लोगों की सुनती है, ज्यादा नहीं। उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्डे बना दिया गया है। और वो रबड़ के गुड्डे चाबी देके छोड़ दिए गए हैं। मैं घबराता नहीं हूं, मौत से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं, मेरी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी, छुट्टी लेता तो ये नहीं होता। मैं आज भी इनमें भगवान देखता हूं। और मैं आपको कह रहा हूं, छाती पीछे चल, हाथ पासे हो। मैं आज भी कह रहा हूं कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। और आज अंबेडकर सर की फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हम परिवार हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर हैं हमारे, लेकिन हम परिवार की एकता में बंधे हुए हैं। उस परिवार की एकता को तोड़ा जा रहा है और उस परिवार की एकता का रखवाला राहुल गांधी है। मैं चट्टान की तरह इस मुसीबत के टाइम में हर कांग्रेस के वर्कर के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। खड़ा रहूंगा उस्ताद। और दूसरी बात, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है पंजाब में। बताएं पंजाब के लिए क्या किया है? हैं? कुछ नहीं। राष्ट्र धर्म यही कहता है कि पंजाब के लोगों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये सत्य बोले जाएं। जहां जहां माइनॉरिटी है, जहां जहां हिंदुत्व का एजेंडा चलता नहीं, कश्मीर में मुस्लिम भाई मुख्यमंत्री बनता है, यहां सिख मेजॉरिटी में तो सिख मुख्यमंत्री बनता है,
जहां जहां पंजाब के लोग कहते हैं पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, पंजाब जीवे गुरां दे नाम। और वो गुरुओं के नाम जीने वाला पंजाब, उसके परिवार को तोड़ा जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है वोटों की पोलराइजेशन के लिए। मैं जिंदगी में एक बार मरूंगा, बार बार कायर मरते हैं, समझे नहीं? मुझे किसी भी जेल में डालो, और मैं आज आपको कह रहा हूं, इतिहास गवाह है, 323 में आज तक 323 में किसी ने हफ्ता कैद नहीं काटी, हफ्ता कैद, और कभी आज तक रिव्यू नहीं हुआ। तो सिद्धू क्यों आया जेल में? एक मिनट, सिद्धू जेल में इसलिए आया कि वो संस्थाएं मेरे पूर्वजों ने स्थापित की थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया था, और वो संस्थाएं उनकी इज्जत करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू इस जेल में आया, एक बार भी उफ नहीं की। हर रोज कोई ना कोई लोकतंत्र नहीं षड्यंत्र होता था। आपके सामने ही आज क्या हुआ? सवेरे सरकार वेट कर रही थी कि टीवी वाले कब जाएं, सत्य सुनने का मादा नहीं। और ये लोग कब जाएं? कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बर्फ की डली नहीं है, पिघल जाएगा। खड़े हैं वो, आज भी खड़े हैं वो। दूसरी बात नहीं, यहां आज की बात कर रहा हूं, पहले भी हुआ, छोड़ रहे हैं जी, मैंने कहा छोड़ दो। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं बारी मुख्यमंत्री कि जो सत्य की आवाज है वो बिल्कुल सही है। और मैं आज अपने छोटे भाई भगवंत मान को पूछना चाहता हूं, मैं उसको भगवंत मान को पूछना चाहता हूं कि बड़े दमगजे मारता था भाई तू, हैं? जब सत्ता में नहीं था तुझे किसी ने नहीं रोका, चुटकुले सुना, सपने बेचे तुमने, झूठ बेचा, तुमने पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया, और आज तुम एक अखबारी मुख्यमंत्री बन के रह गए हो, अखबारी मुख्यमंत्री। और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे। अरे सिद्धू एक मरवा दिया, तू दो और मरवा। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते। भगवंत मान की बात मैं कह रहा हूं ना, भगवंत मान साहब, मैं याद कराता हूं, 36,000 प्रोफेसर हरे पेन नाल आंदे ही पक्के करांगे। किथे गई स्याही, किथे गई मित्र प्यारे तेरी स्याही? ते जदों बिजली फ्री देण दी गल कीती सी, लोकां नूं दस्सिया सी भी कर्जा चुक के 25,000 करोड़ दा तू फ्री बननेगा किसे नूं, ते ओ कर्जा किने मोड़ना मित्रा? ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੀਐਸਐਫ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਬੀਐਸਐਫ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਐ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਖੜੀ ਐ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੀਐਸਐਫ ਖੜੀ ਐ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੀਸ ਲਹਾ ਦੇਾਂਗੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਸੀਸ ਲਾ ਲਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੀਸ? बरगाड़ी ਦਾ इंसाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह लाया ਉਹਦੇ ਤੇ, बरगाड़ी ਦਾ इंसाफ 24 घंटे में हो जाएगा। पैसे सुन ले मित्रा, तू मेरा छोटा भाई है भगवंत मान साहब, मैं सोचदा ही तेरा शेर वर्गा दिल हो, पर तू आज बड़ी छोटी गल की नवजोत सिद्धू ਲਈ। मैं कोई गल नहीं, तू मेरा छोटा भाई रहेगा हमेशा। सुन ले मित्र प्यारे 50,000 करोड़ किथे है? किथे है केजरीवाल साहब ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢੂ ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੂੰ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂ। 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲਤਾ, ਰੇਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 3700 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ 12,000 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ। ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੈ ਲੂ? ਸਾਰੀ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ,
ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਾਂਗੇ। ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਜਟ? ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਧੂੜ 'ਚ ਯਾਰੋ ਤੂੰ ਟੱਟੂ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ, 30 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੱਪ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਹੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਾਇੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣੀ ਆ। वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। जब भी डिक्टेटरशिप एक क्रांति आई, आज मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी, और वो सरकार की जड़ें हिला दी। मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस का वर्कर देखिए जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है और किस तरह से बर्फ ठेली नहीं है तो पिघल जाएगा। लोकतंत्र बेड़ियों में मैं कोई नहीं ला रहा, कुछ चीज नहीं रही कोई। उसके लिए भी है आज लोकतंत्र बेड़ियों में पंजाब ढाल है, इस देश की ढाल पर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है, जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, लोकतंत्र नहीं सेंटर की बड़ा आपकी कोई आगे क्या है। उसे दबाने के प्रयास में, क्योंकि कुछ किया नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमने शांत जाना तेरा कमजोर करके शांत रहा यार, शांत रहा 2 मिनट। 70-75 साल पहले राहुल गांधी चट्टान की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो चट्टान की काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी आज लोकतंत्र की बेड़ियां काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है।
आज शेर की तरह एक दहाड़ है, पूरे देश में दहाड़ है, उस सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब शेर दहाड़ता है तो अमेरिका, जर्मनी, पूरी दुनिया में वो आवाज हर तरह से गूंज रही है। डिबेट और डिसेंट ये डेमोक्रेसी के एसेंस हैं। एसेंस कि तुमसे अगर कोई रग नहीं मिलती तो वो पार्लियामेंट में बोलेगा और बताएगा। ऑपोजिशन का रोल है ये। तुम्हारे शब्दावली, अरे मेरे दोस्त, तुमने क्या क्या नहीं बोला, फिर तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई कोई। कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्रंथ मानता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इक्वालिटी, सबका साथ और सबका विकास। कहने को तो यह है, पर क्या किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंची है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे। लोगों की ताकत लोगों तक नहीं, चंग पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है दोस्त। तानाशाह। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, पूछो जो न्याय है। न्याय एक ऐसी संस्था है, न्याय की संस्था, इलेक्शनों की संस्था, इलेक्शन कमीशन है। जो उच्च न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी संस्था है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, पीछे हो मित्रा, कोई रोवा नहीं, अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी जो कर रहे हैं पंजाब च थोड़े बच्चे वाली कर रहे हैं मित्रा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, देही दाते लाऊं। संस्थाएं, ये संस्थाएं पवित्र थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं चलाती हैं उन वैल्यूज को। वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। वो संस्थाएं आज गुलाम हैं। वो संस्थाएं आज 2 लोगों की सुनती है, 4 लोगों की सुनती है, 6 लोगों की सुनती है, ज्यादा नहीं। उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्डे बना दिया गया है। और वो रबड़ के गुड्डे चाबी देके छोड़ दिए गए हैं। मैं घबराता नहीं हूं, मौत से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं, मेरी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी, छुट्टी लेता तो ये नहीं होता। मैं आज भी इनमें भगवान देखता हूं। और मैं आपको कह रहा हूं, छाती पीछे चल, हाथ पासे हो। मैं आज भी कह रहा हूं कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। और आज अंबेडकर सर की फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हम परिवार हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर हैं हमारे, लेकिन हम परिवार की एकता में बंधे हुए हैं। उस परिवार की एकता को तोड़ा जा रहा है और उस परिवार की एकता का रखवाला राहुल गांधी है। मैं चट्टान की तरह इस मुसीबत के टाइम में हर कांग्रेस के वर्कर के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। खड़ा रहूंगा उस्ताद। और दूसरी बात, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है पंजाब में। बताएं पंजाब के लिए क्या किया है? हैं? कुछ नहीं। राष्ट्र धर्म यही कहता है कि पंजाब के लोगों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये सत्य बोले जाएं। जहां जहां माइनॉरिटी है, जहां जहां हिंदुत्व का एजेंडा चलता नहीं, कश्मीर में मुस्लिम भाई मुख्यमंत्री बनता है, यहां सिख मेजॉरिटी में तो सिख मुख्यमंत्री बनता है। जहां जहां पंजाब के लोग कहते हैं पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, पंजाब जीवे गुरां दे नाम। और वो गुरुओं के नाम जीने वाला पंजाब, उसके परिवार को तोड़ा जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है। वोटों की पोलराइजेशन के लिए मैं जिंदगी में एक बार मरूंगा, बार बार कायर मरते हैं, समझे नहीं? मुझे किसी भी जेल में डालो और मैं आज आपको कह रहा हूं, इतिहास गवाह है 323 में आज तक
323 में किसी ने हफ्ता कैद नहीं काटी, हफ्ता कैद, और कभी आज तक रिव्यू नहीं हुआ। तो सिद्धू क्यों आया जेल में? एक मिनट, सिद्धू जेल में इसलिए आया कि वो संस्थाएं मेरे पूर्वजों ने स्थापित की थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया था, और वो संस्थाएं, उनकी इज्जत करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू इस जेल में आया। एक बार भी उफ नहीं की। हर रोज कोई ना कोई लोकतंत्र नहीं षड्यंत्र होता था। आपके सामने ही आज क्या हुआ? सवेरे सरकार वेट कर रही थी कि टीवी वाले कब जाएं, सत्य सुनने का मादा नहीं। और ये लोग कब जाएं? कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बर्फ की डली नहीं है, पिघल जाएगा। खड़े हैं वो, आज भी खड़े हैं वो। दूसरी बात नहीं, यहां आज की बात कर रहा हूं, पहले भी हुआ, छोड़ रहे हैं जी, मैंने कहा छोड़ दो। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं हमारी मुख्यमंत्री कि जो सत्य की आवाज है वो बिल्कुल सही है। और मैं आज अपने छोटे भाई भगवंत मान को पूछना चाहता हूं, मैं उसको भगवंत मान को पूछना चाहता हूं कि बड़े दमगजे मारता था भाई तू, हैं? जब सत्ता में नहीं था तुझे किसी ने नहीं रोका, चुटकुले सुना, सपने बेचे तुमने, झूठ बेचा, तुमने पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया, और आज तुम एक अखबारी मुख्यमंत्री बन के रह गए हो, अखबारी मुख्यमंत्री। और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे। अरे सिद्धू एक मरवा दिया, तू दो और मरवा। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते। भगवंत मान की बात मैं कह रहा हूं ना, भगवंत मान साहब, मैं याद कराता हूं, 36,000 प्रोफेसर हरे पेन नाल आंदे ही पक्के करांगे। किथे गई स्याही, किथे गई मित्र प्यारे तेरी स्याही? ते जदों बिजली फ्री देण दी गल कीती सी, लोकां नूं दस्सिया सी भी करजा चुक के 25,000 करोड़ दा तू फ्री वंडेगा किसे नूं, ते ओ करजा किने मोड़ना मित्रा? ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੀਐਸਐਫ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਬੀਐਸਐਫ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਐ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਖੜੀ ਐ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੀਐਸਐਫ ਖੜੀ ਐ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੀਸ ਲਹਾ ਦੇਾਂਗੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਸੀਸ ਲਾ ਲਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੀਸ? बरगाड़ी ਦਾ इंसाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह लाया ਉਹਦੇ ਤੇ, बरगाड़ी ਦਾ इंसाफ 24 घंटे में हो जाएगा। पैसे सुन ले मित्रा, तू मेरा छोटा भाई है भगवंत मान साहब, मैं सोचदा ही तेरा शेर वर्गा दिल हो, पर तू आज बड़ी छोटी गल की नवजोत सिद्धू ਲਈ। मैं कोई गल नहीं, तू मेरा छोटा भाई रहेगा हमेशा। सुन ले मित्र प्यारे 50,000 करोड़ किथे है? किथे है केजरीवाल साहब ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢੂ ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੂੰ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂ। 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲਤਾ, ਰੇਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 3700 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ 12,000 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ। ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੈ ਲੂ? ਸਾਰੀ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਜਟ? ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਧੂੜ 'ਚ ਯਾਰੋ ਤੂੰ ਟੱਟੂ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ, 30 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ,
पंजाब दा विकास ठप पिया, लोग त्राही त्राही करते हैं, समझे नहीं। डॉक्टरां दी गल इन्हां नूं यही नहीं पता भी MLA हैं कि नहीं, जाके उत्थे हस्पतालां 'च खड़ जांदे आ, डॉक्टरां नूं गालां कड्ढण लाइंदे आ। किहड़ा कानून बनाया मैनूं दस्सण, फिर कहना मैं इहनूं अंदर दे दूं, मैं उन्होंने अंदर दे, ओ मैनू दे, ओ मित्रा अंदर तू जिथे देना है। मैं कहा जिन्नी मर्जी कर, जड़ा करप्ट है फिर उदों पैसे बरामद कर, की फायदा होया जे तू किसी नूं मैं तो माड़ा पानी है। कि वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। जब भी डिक्टेटरशिप एक क्रांति आई, आज मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी, और वो इस सरकार की जड़ें हिला देगा। मैं आज भी कहता हूँ कि कांग्रेस का वर्कर देखिए जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है, और किस तरह से करप्शन फैली नहीं है, लोकतंत्र बेड़ियों में, बेड़ियों में मैं कोई नहीं ला रहा, कुछ नहीं कोई उसके लिए भी है। आज लोकतंत्र बेड़ियों में, बेड़ियों में पंजाब ढाल है, इस देश की ढाल, ढाल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है, जहां जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, लोकतंत्र नहीं सेंटर की उसे दबाने के प्रयास में, क्योंकि कुछ किया नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमने शांत कमजोर करके कोई शांत रहा यार, शांत रहा 2 मिनट। 70-75 साल पहले राहुल गांधी जो चट्टान की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया, उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो चट्टान की काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है, आज शेर की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था, उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी आज लोकतंत्र की बेड़ियां काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह एक दहाड़ है, पूरे देश में दहाड़ है। उस सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, और जब शेर दहाड़ता है तो अमेरिका, जर्मनी, पूरी दुनिया में वो आवाज हर तरह से गूंज रही है। डिबेट और डिसेंट ये डेमोक्रेसी के एसेंस हैं। एसेंस कि तुमसे अगर कोई रग नहीं मिलती तो वो पार्लियामेंट में बोलेगा,
और बताएगा। ऑपोजिशन का रोल है ये। तुम्हारे शब्दावली, अरे मेरे दोस्त, तुमने क्या क्या नहीं बोला। फिर तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई कोई। कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्रंथ मानता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इक्वालिटी, सबका साथ और सबका विकास। कहने को तो यह है, पर क्या किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंची है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे। लोगों की ताकत लोगों तक नहीं, चंग पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है दोस्त। तानाशाह। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, पूछो जो न्याय है। न्याय एक ऐसी संस्था है, न्याय की संस्था, इलेक्शनों की संस्था, इलेक्शन कमीशन है। जो उच्च न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी संस्था है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, पीछे हो मित्रा, कोई रोवा नहीं, अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी जो कर रहे हैं पंजाब च थोड़े बच्चे वाली कर रहे हैं मित्रा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, देही दाते लाऊं। संस्थाएं, ये संस्थाएं पवित्र थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं चलाती हैं उन वैल्यूज को। वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। वो संस्थाएं आज गुलाम हैं। वो संस्थाएं आज 2 लोगों की सुनती है, 4 लोगों की सुनती है, 6 लोगों की सुनती है, ज्यादा नहीं। उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्डे बना दिया गया है। और वो रबड़ के गुड्डे चाबी देके छोड़ दिए गए हैं। मैं घबराता नहीं हूं, मौत से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं, मेरी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी, छुट्टी लेता तो ये नहीं होता। मैं आज भी इनमें भगवान देखता हूं। और मैं आपको कह रहा हूं, छाती पीछे चल, हाथ पासे हो। मैं आज भी कह रहा हूं कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। और आज अंबेडकर सर की फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हम परिवार हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर हैं हमारे, लेकिन हम परिवार की एकता में बंधे हुए हैं। उस परिवार की एकता को तोड़ा जा रहा है और उस परिवार की एकता का रखवाला राहुल गांधी है। मैं चट्टान की तरह इस मुसीबत के टाइम में हर कांग्रेस के वर्कर के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। खड़ा रहूंगा उस्ताद। और दूसरी बात, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है पंजाब में। बताएं पंजाब के लिए क्या किया है? हैं? कुछ नहीं। राष्ट्र धर्म यही कहता है कि पंजाब के लोगों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये सत्य बोले जाएं। जहां जहां माइनॉरिटी है, जहां जहां हिंदुत्व का एजेंडा चलता नहीं, कश्मीर में मुस्लिम भाई मुख्यमंत्री बनता है, यहां सिख मेजॉरिटी में तो सिख मुख्यमंत्री बनता है। जहां जहां पंजाब के लोग कहते हैं पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, पंजाब जीवे गुरां दे नाम। और वो गुरुओं के नाम जीने वाला पंजाब, उसके परिवार को तोड़ा जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है, वोटों की पोलराइजेशन के लिए। मैं जिंदगी में एक बार मरूंगा, बार बार कायर मरते हैं, समझे नहीं? मुझे किसी भी जेल में डालो। और मैं आज आपको कह रहा हूं, इतिहास गवाह है, 323 में आज तक 323 में किसी ने हफ्ता कैद नहीं काटी, हफ्ता कैद। और कभी आज तक रिव्यू नहीं हुआ। तो सिद्धू क्यों आया जेल में? एक मिनट, सिद्धू जेल में इसलिए आया कि वो संस्थाएं मेरे पूर्वजों ने स्थापित की थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया था। और वो संस्थाएं, उनकी इज्जत करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू इस जेल में आया, एक बार भी उफ नहीं की। हर रोज कोई ना कोई
लोकतंत्र नहीं षड्यंत्र होता था। आपके सामने ही आज क्या हुआ। सवेरे सरकार वेट कर रही थी कि टीवी वाले कब जाएं, सत्य सुनने का मादा नहीं। और ये लोग कब जाएं। कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बर्फ की डली नहीं है, पिघल जाएगा। खड़े हैं वो, आज भी खड़े हैं वो। दूसरी बात नहीं, यहां आज की बात कर रहा हूं। पहले भी हुआ, छोड़ रहे हैं जी। मैंने कहा छोड़ दो, हाँ। इसलिए मैं कहता हूं हमारी मुख्यमंत्री कि जो सत्य की आवाज है वो बिल्कुल सही है। और मैं आज अपने छोटे भाई भगवंत मान को पूछना चाहता हूं। मैं उसको भगवंत मान को पूछना चाहता हूं कि बड़े दमगजे मारता था भाई तू, हैं? जब सत्ता में नहीं था तुझे किसी ने नहीं रोका। चुटकुले सुना, सुपने बेचे तुमने, झूठ बेचा, तुमने पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया और आज तुम एक अखबारी मुख्यमंत्री बन के रह गए हो। अखबारी मुख्यमंत्री। और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे। अरे सिद्धू एक मरवा दिया, तू दो और मरवा। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते। भगवंत मान की बात मैं कह रहा हूं ना, भगवंत मान साहब, मैं याद कराता हूं 36,000 प्रोफेसर हरे पेन नाल आंदे ही पक्के करांगे। किथे गई स्याही, किथे गई मित्र प्यारे तेरी स्याही। ते जदों बिजली फ्री देण दी गल कीती सी, लोकां नूं दस्सिया सी भी करजा चुक के 25,000 करोड़ दा तू फ्री बननेगा किसे नूं। ते ओ करजा किने मोड़ना मित्रा? ओ करजा पंजाब दे लोकां ने। जवाक जमदा 1 लाख करोड़ रुपए दा करजा हुंदा ओहदे सिर ते अज तां तू लेटिया पिया सेंटर दी सरकार दे मूहरे। उदों तू चन्नी नूं कहंदा सीगा BSF क्यों आई, BSF क्यों खड़ी है इत्थे, किहड़ी डील करके आया। ते हुण मैं तैनूं पुछदा भी सारे बार्डरां ते BSF खड़ी है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर BSF खड़ी है। सेंटर भी उन्ना जिम्मेवार है इस लॉ एंड ऑर्डर दा जिन्नी साडी सरकार, जिथे पक्ष लैण वाली गल है। दूसरा केजरीवाल साहब ते तू एक बीबी कहंदी सी सीस लहा देंगे 23 फसलों के उत्ते, MSP देंगे, सीस ला लियो। किथे असीस? बरगाड़ी दा इंसाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह लाया ओहदे ते, बरगाड़ी दा इंसाफ 24 घंटे में हो जाएगा। पैसे सुन ला मित्रा, तू मेरा छोटा भाई है भगवंत मान साहब। मैं सोचदा ही तेरा शेर वर्गा दिल हो, पर तू अज बड़ी छोटी गल कीती नवजोत सिद्धू लई। मैं कोई गल नहीं, तू मेरा छोटा भाई रहेगा हमेशा। सुन लै मित्र प्यारे 50,000 करोड़ किथे है? केजरीवाल साहब जिहड़ा कहंदा 20,000 करोड़ रेते चों कढूं ते 30,000 करोड़ बजट चों कढ लूं, फिर पंजाब दे लोकां दे लाऊं। 2 रुपये नहीं कढे तुसीं कहने हो रेता लोकां लई खोलता। रेता अज भी ठेकेदारां लई खुला है। रेते दी ट्राली जदों कांग्रेस दी सरकार सी 3700 रुपये 3 सैकड़ा सी, अज 12,000 रुपये 3 सैकड़ा। किहड़ा गरीब ले लू? सारी रुक जूगी। फिर एक्साइज पॉलिसी, तू कहंदा सी कारपोरेशन बनावांगे, रेते दी कारपोरेशन बनावांगे, लख नौकरियां देंगे। बस किथे है बजट? कदे दस्सिया किसे नूं भी पैसे लिआएगा कित्थों? अखबारां 'च विकास कलाया, लोकां दा मूर्ख बनाया है जी। अखबारां 'च फोटोआं खिचाण तो, एडवरटाइजमेंटां देण तो वेल नहीं मिलिया। धूड़ 'च यारो तू टट्टू उड़ाया है। एक गल सुन लो, एक गल सुन लो ध्यान नाल। पावर सेंट्रलाइज कर ली, 30 मिनिस्ट्रियां एक बंदे दे कोल ने। पंजाब दा विकास ठप पिया, लोग त्राही करदे आ। समझा नहीं? डॉक्टरां दी गल, इन्हां नूं यही नहीं पता भी MLA हैं कि नहीं। जाके उत्थे हस्पतालां 'च खड़ जांदे आ, डॉक्टरां नूं गालां कढण लाइंदे आ। किहड़ा कानून बनाया मैनूं दस्सण। फिर कहना मैं इहनूं अंदर दे दूं, मैं उन्होंने अंदर दे, मैनू दे मित्रा अंदर, तू जिथे देना है। मैं कहा जिन्नी मर्जी कर, जड़ा करप्ट है फिर उदों पैसे बरामद कर। की फायदा होया जे तू किसी नूं
मैं तो माड़ा पानी है कि वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। जब भी डिक्टेटरशिप एक क्रांति आई आज मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी और वो इस सरकार की जड़ें हिलाने। मैं आज भी कहता हूँ कि कांग्रेस का वर्कर देखिए जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है और किस तरह से बर्फ फैली नहीं है तो पिघल जाएगा। लोकतंत्र बेड़ियों में मैं कोई नहीं ला रहा चीज नहीं रही कोई उसके लिए भी है। आज लोकतंत्र बेड़ियों में पंजाब ढाल है, इस देश की ढाल पर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है, जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, लोकतंत्र नहीं सेंटर की बड़ा आपकी कोई आगे क्या है उसे दबाने के प्रयास में क्योंकि कुछ किया नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमने शांत करना यार नहीं जाना तेरा कमजोर करके शांत रहा यार, शांत रहा 2 मिनट। 70-75 साल पहले राहुल गांधी के चट्टान की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया, उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो चट्टान की काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था, उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी आज लोकतंत्र की बेड़ियां काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह एक दहाड़ है, पूरे देश में दहाड़ है। उस सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब शेर दहाड़ता है तो अमेरिका, जर्मनी, पूरी दुनिया में वो आवाज हर तरह से गूंज रही है। डिबेट और डिसेंट ये डेमोक्रेसी के एसेंस हैं। एसेंस कि तुमसे अगर कोई रग नहीं मिलती तो वो पार्लियामेंट में बोलेगा और बताएगा। ऑपोजिशन का रोल है ये। तुम्हारे शब्दावली, अरे मेरे दोस्त, तुमने क्या क्या नहीं बोला, फिर तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई कोई। कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्रंथ मानता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इक्वालिटी, सबका साथ और सबका विकास। कहने को तो यह है, पर क्या किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंची है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे। लोगों की ताकत लोगों तक नहीं, चंग पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है दोस्त। तानाशाह। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं,
पूछो जो न्याय है, न्याय एक ऐसी संस्था है, न्याय की संस्था, इलेक्शनों की संस्था, इलेक्शन कमीशन है, जो उच्च न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी संस्था है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, पीछे हो मित्रा, कोई रोड़ा नहीं, अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी जो कर रहे हैं पंजाब च थोड़े बच्चे वाली कर रहे हैं मित्रा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, देही दाते लाऊं। संस्थाएं, ये संस्थाएं पवित्र थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं चलाती हैं उन वैल्यूज को, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। वो संस्थाएं आज गुलाम हैं। वो संस्थाएं आज 2 लोगों की सुनती है, 4 लोगों की सुनती है, 6 लोगों की सुनती है, ज्यादा नहीं। उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्डे बना दिया गया है, और वो रबड़ के गुड्डे चाबी देके छोड़ दिए गए हैं। मैं घबराता नहीं हूं, मौत से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं, मेरी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी, छुट्टी लेता तो ये नहीं होता। मैं आज भी इनमें भगवान देखता हूं, और मैं आपको कह रहा हूं, छाती पीछे चल, हाथ पासे हो। मैं आज भी कह रहा हूं कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। और आज अंबेडकर सर की फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हम परिवार हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर हैं हमारे, लेकिन हम परिवार की एकता में बंधे हुए हैं। उस परिवार की एकता को तोड़ा जा रहा है, और उस परिवार की एकता का रखवाला राहुल गांधी है। मैं चट्टान की तरह इस मुसीबत के टाइम में हर कांग्रेस के वर्कर के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। खड़ा रहूंगा उस्ताद। और दूसरी बात, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है पंजाब में। बताएं पंजाब के लिए क्या किया है? हाँ? कुछ नहीं। राष्ट्र धर्म यही कहता है कि पंजाब के लोगों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये सत्य बोले जाएं। जहां जहां माइनॉरिटी है, जहां जहां हिंदुत्व का एजेंडा चलता नहीं, कश्मीर में मुस्लिम भाई मुख्यमंत्री बनता है, यहां सिख मेजॉरिटी में तो सिख मुख्यमंत्री बनता है। जहां जहां पंजाब के लोग कहते हैं पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, पंजाब जीवे गुरां दे नाम। और वो गुरुओं के नाम जीने वाला पंजाब, उसके परिवार को तोड़ा जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है, वोटों की पोलराइजेशन के लिए। मैं जिंदगी में एक बार मरूंगा, बार बार कायर मरते हैं, समझे नहीं? मुझे किसी भी जेल में डालो, और मैं आज आपको कह रहा हूं, इतिहास गवाह है, 323 में आज तक 323 में किसी ने हफ्ता कैद नहीं काटी, हफ्ता कैद। और कभी आज तक रिव्यू नहीं हुआ। तो सिद्धू क्यों आया जेल में? एक मिनट, सिद्धू जेल में इसलिए आया कि वो संस्थाएं मेरे पूर्वजों ने स्थापित की थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया था, और वो संस्थाएं, उनकी इज्जत करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू इस जेल में आया, एक बार भी उफ नहीं की। हर रोज कोई ना कोई लोकतंत्र नहीं, षड्यंत्र होता था। आपके सामने ही आज क्या हुआ? सवेरे सरकार वेट कर रही थी कि टीवी वाले कब जाएं, सत्य सुनने का मादा नहीं। और ये लोग कब जाएं? कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बर्फ की डली नहीं है, पिघल जाएगा। खड़े हैं वो, आज भी खड़े हैं वो। दूसरी बात, नहीं, यहां आज की बात कर रहा हूं, पहले भी हुआ, छोड़ रहे हैं जी, मैंने कहा छोड़ दो। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं बारी मुख्यमंत्री कि जो सत्य की आवाज है वो बिल्कुल सही है। और मैं आज अपने छोटे भाई भगवंत मान को पूछना चाहता हूं,
मैं उसको भगवंत मान को पूछना चाहता हूं कि बड़े दमगजे मारता था भाई तू, हैं? जब सत्ता में नहीं था तुझे किसी ने नहीं रोका, चुटकुले सुना, सपने बेचे तुमने, झूठ बेचा, तुमने पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया और आज तुम एक अखबारी मुख्यमंत्री बन के रह गए हो, अखबारी मुख्यमंत्री। और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे। अरे सिद्धू एक मरवा दिया, तू दो और मरवा। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते। भगवंत मान की बात मैं कह रहा हूं ना, भगवंत मान साहब मैं याद कराता हूं, 36,000 प्रोफेसर हरे पेन नाल आंदे ही पक्के करांगे। किथे गई स्याही, किथे गई मित्र प्यारे तेरी स्याही? ते जदों बिजली फ्री देण दी गल कीती सी, लोकां नूं दस्सिया सी भी करजा चुक के 25,000 दा, 25,000 करोड़ दा तू फ्री वंडेगा किसे नूं, ते ओह करजा किने मोड़ना मित्रा? ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੀਐਸਐਫ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਬੀਐਸਐਫ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਐ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਖੜੀ ਐ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੀਐਸਐਫ ਖੜੀ ਐ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੀਸ ਲਹਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤਈਓ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਸੀਸ ਲਾ ਲਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੀਸ? बरगाड़ी ਦਾ इंसाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह लाया ਉਹਦੇ ਤੇ, बरगाड़ी ਦਾ इंसाफ 24 घंटे में हो जाएगा। पैसे सुन ले मित्रा, तू मेरा छोटा भाई है भगवंत मान साहब, मैं सोचदा ही तेरा शेर वर्गा दिल हो, पर तू अज बड़ी छोटी गल की नवजोत सिद्धू ਲਈ। मैं कोई गल नहीं, तू मेरा छोटा भाई रहेगा हमेशा। सुन ले मित्र प्यारे 50,000 करोड़ किथे है? किथे है केजरीवाल साहब ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢੂ ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੂੰ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂ। 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲਤਾ, ਰੇਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 3700 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ 12,000 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ। ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੈ ਲੂ? ਸਾਰੀ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਜਟ? ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਧੂੜ 'ਚ ਯਾਰੋ ਤੂੰ ਟੱਟੂ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ, 30 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੱਪ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਹੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣੀ ਆ। वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने, जब भी डिक्टेटरशिप क्रांति आई, आज
मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी और वो इस सरकार की जड़ें हिला दी। मैं आज भी कहता हूँ कि कांग्रेस का वर्कर देखिए जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है और किस तरह से बर्फ फैली नहीं है जो पिघल जाएगा। लोकतंत्र बेड़ियों में कोई नहीं ला रहा, चीज नहीं रही कोई उसके लिए भी है। आज लोकतंत्र बेड़ियों में पंजाब ढाल है, इस देश की ढाल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है, जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, लोकतंत्र नहीं सेंटर की बड़ा हाथी कोई आके उसे दबाने के प्रयास में क्योंकि कुछ किया नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमने शांत जाना तेरा कमजोर करके नवजोत सिंह सिद्धू शांत रहा यार, शांत रहा 2 मिनट। 70-75 साल पहले राहुल गांधी जो चट्टान की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो चट्टान की काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी आज लोकतंत्र की बेड़ियां काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह एक दहाड़ है, पूरे देश में दहाड़ है। उस सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब शेर दहाड़ता है तो अमेरिका, जर्मनी, पूरी दुनिया में वो आवाज हर तरह से गूंज रही है। डिबेट और डिसेंट ये डेमोक्रेसी के एसेंस हैं। एसेंस कि तुमसे अगर कोई रग नहीं मिलती तो वो पार्लियामेंट में बोलेगा और बताएगा। ऑपोजिशन का रोल है ये। तुम्हारे शब्दावली, अरे मेरे दोस्त, तुमने क्या क्या नहीं बोला, फिर तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई कोई। कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्रंथ मानता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इक्वालिटी, सबका साथ और सबका विकास। कहने को तो यह है, पर क्या किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंची है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे। लोगों की ताकत लोगों तक नहीं, चंग पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है दोस्त। तानाशाह। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, पूछो जो न्याय है। न्याय एक ऐसी संस्था है, न्याय की संस्था, इलेक्शनों की संस्था, इलेक्शन कमीशन है। जो उच्च न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी संस्था है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, पीछे हो मित्रा, कोई रोवा नहीं, अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी जो कर रहे हैं पंजाब च थोड़े बच्चे वाली कर रहे हैं मित्रा। मैं अपने लिए नहीं कर रहा, देही दात लाऊं।
नवजोत सिंह सिद्धू। संस्थाएं, ये संस्थाएं पवित्र थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं चलाती हैं उन वैल्यूज को। वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। वो संस्थाएं आज गुलाम हैं। वो संस्थाएं आज 2 लोगों की सुनती है, 4 लोगों की सुनती है, 6 लोगों की सुनती है, ज्यादा नहीं। उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्डे बना दिया गया है। और वो रबड़ के गुड्डे चाबी देके छोड़ दिए गए हैं। मैं घबराता नहीं हूं, मौत से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं, मेरी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी, छुट्टी लेता तो ये नहीं होता। मैं आज भी इनमें भगवान देखता हूं। और मैं आपको कह रहा हूं, छाती पीछे चल, तो पासे हो। मैं आज भी कह रहा हूं कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। और आज अंबेडकर सर की फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हम परिवार हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर हैं हमारे, लेकिन हम परिवार की एकता में बंधे हुए हैं। उस परिवार की एकता को तोड़ा जा रहा है और उस परिवार की एकता का रखवाला राहुल गांधी है। मैं चट्टान की तरह इस मुसीबत के टाइम में हर कांग्रेस के वर्कर के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। खड़ा रहूंगा उस्ताद। और दूसरी बात, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है पंजाब में। बताएं पंजाब के लिए क्या किया है? हैं? कुछ नहीं। राष्ट्र धर्म यही कहता है कि पंजाब के लोगों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये सत्य बोले जाएं। जहां जहां माइनॉरिटी है, जहां जहां हिंदुत्व का एजेंडा चलता नहीं, कश्मीर में मुस्लिम भाई मुख्यमंत्री बनता है, यहां सिख मेजॉरिटी में तो सिख मुख्यमंत्री बनता है। जहां जहां पंजाब के लोग कहते हैं पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, पंजाब जीवे गुरां दे नाम। और वो गुरुओं के नाम जीने वाला पंजाब, उसके परिवार को तोड़ा जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है, वोटों की पोलराइजेशन के लिए। मैं जिंदगी में एक बार मरूंगा, बार बार कायर मरते हैं, समझे नहीं? मुझे किसी भी जेल में डालो। और मैं आज आपको कह रहा हूं, इतिहास गवाह है, 323 में आज तक 323 में किसी ने हफ्ता कैद नहीं काटी, हफ्ता कैद। और कभी आज तक रिव्यू नहीं हुआ। तो सिद्धू क्यों आया जेल में? एक मिनट, सिद्धू जेल में इसलिए आया कि वो संस्थाएं मेरे पूर्वजों ने स्थापित की थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया था। और वो संस्थाएं, उनकी इज्जत करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू इस जेल में आया, एक बार भी उफ नहीं की। हर रोज कोई ना कोई लोकतंत्र नहीं षड्यंत्र होता था। आपके सामने ही आज क्या हुआ? सवेरे सरकार वेट कर रही थी कि टीवी वाले कब जाएं, सत्य सुनने का मादा नहीं। और ये लोग कब जाएं? कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बर्फ की डली नहीं है, पिघल जाएगा। खड़े हैं वो, आज भी खड़े हैं वो। दूसरी बात, नहीं, यहां आज की बात कर रहा हूं, पहले भी हुआ, छोड़ रहे हैं जी। मैंने कहा छोड़ दो, हाँ? इसलिए मैं कहता हूं बारी मुख्यमंत्री कि जो सत्य की आवाज है वो बिल्कुल सही है। और मैं आज अपने छोटे भाई भगवंत मान को पूछना चाहता हूं, मैं उसको भगवंत मान को पूछना चाहता हूं कि बड़े दमगजे मारता था भाई तू, हैं? जब सत्ता में नहीं था तुझे किसी ने नहीं रोका, चुटकुले सुना, सपने बेचे तुमने, झूठ बेचा, तुमने पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया। और आज तुम एक अखबारी मुख्यमंत्री बन के रह गए हो, अखबारी मुख्यमंत्री। और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है,
ये लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे। अरे सिद्धू एक मरवा दिया, तू दो और मरवा। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते। भगवंत मान की बात मैं कह रहा हूं ना, भगवंत मान साहब, मैं याद कराता हूं, 36,000 प्रोफेसर हरे पेन नाल आंदे ही पक्के करांगे। किथे गई स्याही, किथे गई मित्र प्यारे तेरी स्याही। ते जदों बिजली फ्री देण दी गल कीती सी, लोकां नूं दस्सिया सी भी करजा चुक के 25,000 करोड़ दा तू फ्री वंडेगा किसे नूं, ते ओह करजा किने मोड़ना मित्रा? ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੀਐਸਐਫ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਬੀਐਸਐਫ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਐ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਖੜੀ ਐ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੀਐਸਐਫ ਖੜੀ ਐ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੀਸ ਲਹਾ ਦੇਾਂਗੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਸੀਸ ਲਾ ਲਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੀਸ? बरगाड़ी ਦਾ इंसाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह लाया ਉਹਦੇ ਤੇ, बरगाड़ी ਦਾ इंसाफ 24 घंटे में हो जाएगा। पैसे सुन ले मित्रा, तू मेरा छोटा भाई है भगवंत मान साहब, मैं सोचदा ही तेरा शेर वर्गा दिल हो, पर तू अज बड़ी छोटी गल की नवजोत सिद्धू ਲਈ। पर कोई गल नहीं, तू मेरा छोटा भाई रहेगा हमेशा। सुन ले मित्र प्यारे 50,000 करोड़ किथे है? किथे है केजरीवाल साहब ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢੂ ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੂੰ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂ। 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲਤਾ, ਰੇਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 3700 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ 12,000 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ। ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੈ ਲੂ? ਸਾਰੀ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਜਟ? ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਧੂੜ 'ਚ ਯਾਰੋ ਤੂੰ ਟੱਟੂ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ, 30 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੱਪ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਹੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣੀ ਆ। वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने, जब भी डिक्टेटरशिप क्रांति आई, मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी, और वो सरकार की जड़ें हिला दी। मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस का वर्कर देखिए जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है और किस तरह से बर्फ की ठंडी नहीं है तो पिघल जाएगा। लोकतंत्र बेड़ियों में कोई नहीं ला रहा, कोई
उसके लिए भी है। आज लोकतंत्र बेड़ियों में पंजाब ढाल है, इस देश की ढाल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है, जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, लोकतंत्र नहीं। सेंटर की बड़ा हाथी कोई आके उसे दबाने के प्रयास में, क्योंकि कुछ किया नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमने शांत कमजोर करके शांत रहा यार, शांत रहा 2 मिनट। 70-75 साल पहले राहुल गांधी जो चट्टान की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो चट्टान की काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी आज लोकतंत्र की बेड़ियां काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह एक दहाड़ है, पूरे देश में दहाड़ है। उस सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब शेर दहाड़ता है तो अमेरिका, जर्मनी, पूरी दुनिया में वो आवाज हर तरह से गूंज रही है। डिबेट और डिसेंट ये डेमोक्रेसी के एसेंस हैं। एसेंस कि तुमसे अगर कोई रग नहीं मिलती तो वो पार्लियामेंट में बोलेगा और बताएगा। ऑपोजिशन का रोल है ये। तुम्हारे शब्दावली, अरे मेरे दोस्त, तुमने क्या क्या नहीं बोला। फिर तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई कोई। कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्रंथ मानता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इक्वालिटी, सबका साथ और सबका विकास। कहने को तो यह है, पर क्या किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंची है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे। लोगों की ताकत लोगों तक नहीं, चंग पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है दोस्त। तानाशाह। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, पूछो जो न्याय है। न्याय एक ऐसी संस्था है, न्याय की संस्था, इलेक्शनों की संस्था, इलेक्शन कमीशन है। जो उच्च न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी संस्था है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, पीछे हो मित्रा, कोई रोवा नहीं, अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी जो कर रहे हैं पंजाब च थोड़े बच्चे लिए कर रहे हैं मित्रा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, देही दाद लाऊं। संस्थाएं, ये संस्थाएं पवित्र थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं चलाती हैं उन वैल्यूज को। वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। वो संस्थाएं आज गुलाम हैं। वो संस्थाएं आज 2 लोगों की सुनती है, 4 लोगों की सुनती है, 6 लोगों की सुनती है, ज्यादा नहीं। उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं,
उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्डे बना दिया गया है और वो रबड़ के गुड्डे चाबी देके छोड़ दिए गए हैं। मैं घबराता नहीं हूं, मौत से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं, मेरी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी, छुट्टी लेता तो ये नहीं होता। मैं आज भी इनमें भगवान देखता हूं और मैं आपको कह रहा हूं, छाती पीछे रोक, पीछे चल, हाथ पासे हो। मैं आज भी कह रहा हूं कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। और आज अंबेडकर सर की फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हम परिवार हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर हैं हमारे, लेकिन हम परिवार की एकता में बंधे हुए हैं। उस परिवार की एकता को तोड़ा जा रहा है और उस परिवार की एकता का रखवाला राहुल गांधी है। मैं चट्टान की तरह इस मुसीबत के टाइम में हर कांग्रेस के वर्कर के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। खड़ा रहूंगा उस्ताद। और दूसरी बात, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है पंजाब में। बताएं पंजाब के लिए क्या किया है? हैं? कुछ नहीं। राष्ट्र धर्म यही कहता है कि पंजाब के लोगों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये सत्य बोले जाएं। जहां जहां माइनॉरिटी है, जहां जहां हिंदुत्व का एजेंडा चलता नहीं, कश्मीर में मुस्लिम भाई मुख्यमंत्री बनता है, यहां सिख मेजॉरिटी में तो सिख मुख्यमंत्री बनता है। जहां जहां पंजाब के लोग कहते हैं पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, पंजाब जीवे गुरां दे नाम। और वो गुरुओं के नाम जीने वाला पंजाब, उसके परिवार को तोड़ा जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है, वोटों की पोलराइजेशन के लिए। मैं जिंदगी में एक बार मरूंगा, बार बार कायर मरते हैं, समझे नहीं? मुझे किसी भी जेल में डालो और मैं आज आपको कह रहा हूं, इतिहास गवाह है, 323 में आज तक 323 में किसी ने हफ्ता कैद नहीं काटी, हफ्ता कैद, और कभी आज तक रिव्यू नहीं हुआ। तो सिद्धू क्यों आया जेल में? एक मिनट, सिद्धू जेल में इसलिए आया कि वो संस्थाएं मेरे पूर्वजों ने स्थापित की थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया था, और वो संस्थाएं, उनकी इज्जत करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू इस जेल में आया, एक बार भी उफ नहीं की। हर रोज कोई ना कोई लोकतंत्र नहीं षड्यंत्र होता था। आपके सामने ही आज क्या हुआ? सवेरे सरकार वेट कर रही थी कि टीवी वाले कब जाएं, सत्य सुनने का मादा नहीं, और ये लोग कब जाएं। कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बर्फ की डली नहीं है, पिघल जाएगा। खड़े हैं वो, आज भी खड़े हैं वो। दूसरी बात, नहीं, यहां आज की बात कर रहा हूं, पहले भी हुआ, छोड़ रहे हैं जी, मैंने कहा छोड़ दो। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं बारी मुख्यमंत्री कि जो सत्य की आवाज है वो बिल्कुल सही है। और मैं आज अपने छोटे भाई भगवंत मान को पूछना चाहता हूं, मैं उसको भगवंत मान को पूछना चाहता हूं कि बड़े दमगजे मारता था भाई तू, हैं? जब सत्ता में नहीं था तुझे किसी ने नहीं रोका, चुटकुले सुना, सपने बेचे तुमने, झूठ बेचा, तुमने पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया, और आज तुम एक अखबारी मुख्यमंत्री बन के रह गए हो, अखबारी मुख्यमंत्री। और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा, विड्रॉ करेंगे। अरे सिद्धू एक मरवा दिया, तू दो और मरवा। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते। भगवंत मान की बात मैं कह रहा हूं ना, भगवंत मान साहब, मैं याद कराता हूं, 36,000 प्रोफेसर
ਹਰੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਿਆਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੀ ਸਿਆਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਮੋੜਨਾ ਮਿੱਤਰਾ? ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ BSF ਕਿਉਂ ਆਈ, BSF ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਐ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ BSF ਖੜੀ ਹੈ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ BSF ਖੜੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੀਸ ਲਹਾ ਦੇਾਂਗੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, MSP ਦੇਾਂਗੇ, ਸੀਸ ਲਾ ਲਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੀਸ? बरगाड़ी का इंसाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह लाया ਉਹਦੇ ਤੇ बरगाड़ी का इंसाफ 24 घंटे में हो जाएगा। पैसे सुन ले मित्रा, तू मेरा छोटा भाई है भगवंत मान साहब, मैं सोचदा ही तेरा शेर वर्गा दिल हो, पर तू अज बड़ी छोटी गल की नवजोत सिद्धू लई। मैं कोई गल नहीं, तू मेरा छोटा भाई रहेगा हमेशा। सुन ले मित्र प्यारे 50,000 करोड़ किथे है? किथे है केजरीवाल साहब जिहड़ा कहंदा 20,000 करोड़ रेते चों कढूं ते 30,000 करोड़ बजट चों कढ लूं, फिर पंजाब दे लोकां दे लाऊं। 2 रुपये नहीं कढे तुसीं कहने हो रेता लोकां लई खोलता, रेता अज भी ठेकेदारां लई खुला है। रेते दी ट्राली जदों कांग्रेस दी सरकार सी 3700 रुपये 3 सैकड़ा सी, अज 12,000 रुपये 3 सैकड़ा। किहड़ा गरीब ले लू? सारी रुक जूगी। फिर एक्साइज पॉलिसी तू कहता सी कारपोरेशन बनावांगे, रेते दी कारपोरेशन बनावांगे, लख नौकरियां देंगे, बस किथे है बजट? कदे दस्या किसी नूं भी पैसे लियाएगा कित्थों? अखबारां 'च विकास कलाया, लोकां दा मूर्ख बनाया है जी। अखबारां 'च फोटोआं खिचाण तो एडवरटाइजमेंटां देण तो वेल नहीं मिलिया, धूड़ 'च यारो तू टट्टू उड़ाया है। एक गल सुन लो एक गल सुन लो ध्यान नाल, पावर सेंट्रलाइज कर ली, 30 मिनिस्ट्रियां एक बंदे दे कोल ने, पंजाब दा विकास ठप पिया, लोग त्राही करदे आ, समझा नहीं? डॉक्टरां दी गल इन्हां नूं यही नहीं पता भी MLA हैं कि नहीं, जाके उत्थे हस्पतालां 'च खड़ जांदे आ, डॉक्टरां नूं गालां कड्ढण लाइंदे आ। किहड़ा कानून बनाया मैनूं दस्सण? फिर कहना मैं इहनूं अंदर दे दूं, मैं उन्होंने अंदर दे, मैनू दे मित्रा अंदर तू जिथे देना है। मैं कहा जिन्नी मर्जी कर, जड़ा करप्ट है फिर उदों पैसे बरामद कर। की फायदा होया जे तू किसी नूं माड़ा पानी है। वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने, जब भी डिक्टेटरशिप क्रांति आई, मैं ठोक के कहता हूँ कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी, और वो इस सरकार की जड़ें हिला दी। मैं आज भी कहता हूँ कि कांग्रेस का वर्कर देखिए जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है और किस तरह से बर्फ फैली नहीं है तो पिघल जाएगा। लोकतंत्र बेड़ियों में कोई नहीं ला रहा, चीज नहीं रही कोई उसके लिए भी है। आज लोकतंत्र बेड़ियों में पंजाब ढाल है, इस देश की ढाल पर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है, जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, लोकतंत्र नहीं।
उसे जमाने के प्रयास में, क्योंकि कुछ किया नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमने शान कमजोर करके कोई नवजोत सिंह सिद्धू शांत रहा यार, शांत रहा 2 मिनट। 70-75 साल पहले राहुल गांधी जो चट्टान की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो चट्टान की काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है, आज शेर की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी आज लोकतंत्र की बेड़ियां काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह एक दहाड़ है, पूरे देश में दहाड़ है। उस सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब शेर दहाड़ता है तो अमेरिका, जर्मनी, पूरी दुनिया में वो आवाज हर तरह से गूंज रही है। डिबेट और डिसेंट ये डेमोक्रेसी के एसेंस हैं। एसेंस कि तुमसे अगर कोई रग नहीं मिलती तो वो पार्लियामेंट में बोलेगा और बताएगा। ऑपोजिशन का रोल है ये। तुम्हारे शब्दावली, अरे मेरे दोस्त, तुमने क्या क्या नहीं बोला, फिर तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई कोई। कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्रंथ मानता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इक्वालिटी, सबका साथ और सबका विकास। कहने को तो यह है, पर क्या किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंची है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे। लोगों की ताकत लोगों तक नहीं, चंग पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है दोस्त। तानाशाह। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, पूछो जो न्याय है। न्याय एक ऐसी संस्था है, न्याय की संस्था, इलेक्शनों की संस्था, इलेक्शन कमीशन है। जो उच्च न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी संस्था है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, पीछे हो मित्रा, कोई रोवा नहीं, अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी जो कर रहे हैं पंजाब च थोड़े बच्चे वाली कर रहे हैं मित्रा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, देही दाते लाऊं। नवजोत सिंह सिद्धू। संस्थाएं, ये संस्थाएं पवित्र थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं चलाती हैं उन वैल्यूज को। वो है कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। वो संस्थाएं आज गुलाम हैं। वो संस्थाएं आज 2 लोगों की सुनती है, 4 लोगों की सुनती है, 6 लोगों की सुनती है, ज्यादा नहीं। उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्डे बना दिया गया है। और वो रबड़ के गुड्डे चाबी देके छोड़ दिए गए हैं। मैं घबराता नहीं हूं, मौत से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं, मेरी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी, छुट्टी लेता तो ये नहीं होता। मैं आज भी
इनमें भगवान देखता हूं। और मैं आपको कह रहा हूं, छाती पीछे चल, तो पासे हो। मैं आज भी कह रहा हूं कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। और आज अंबेडकर सर की फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हम परिवार हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर हैं हमारे, लेकिन हम परिवार की एकता में बंधे हुए हैं। उस परिवार की एकता को तोड़ा जा रहा है और उस परिवार की एकता का रखवाला राहुल गांधी है। मैं चट्टान की तरह इस मुसीबत के टाइम में हर कांग्रेस के वर्कर के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। खड़ा रहूंगा उस्ताद। और दूसरी बात, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है पंजाब में। बताएं पंजाब के लिए क्या किया है? हैं? कुछ नहीं। राष्ट्र धर्म यही कहता है कि पंजाब के लोगों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये सत्य बोले जाएं। जहां जहां माइनॉरिटी है, जहां जहां हिंदुत्व का एजेंडा चलता नहीं, कश्मीर में मुस्लिम भाई मुख्यमंत्री बनता है, यहां सिख मेजॉरिटी में तो सिख मुख्यमंत्री बनता है। जहां जहां पंजाब के लोग कहते हैं पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, पंजाब जीवे गुरां दे नाम। और वो गुरुओं के नाम जीने वाला पंजाब, उसके परिवार को तोड़ा जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है, वोटों की पोलराइजेशन के लिए। मैं जिंदगी में एक बार मरूंगा, बार बार कायर मरते हैं, समझे नहीं? मुझे किसी भी जेल में डालो और मैं आज आपको कह रहा हूं, इतिहास गवाह है, 323 में आज तक 323 में किसी ने हफ्ता कैद नहीं काटी, हफ्ता कैद। और कभी आज तक रिव्यू नहीं हुआ। तो सिद्धू क्यों आया जेल में? एक मिनट, सिद्धू जेल में इसलिए आया कि वो संस्थाएं मेरे पूर्वजों ने स्थापित की थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया था, और वो संस्थाएं, उनकी इज्जत करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू इस जेल में आया, एक बार भी उफ नहीं की। हर रोज कोई ना कोई लोकतंत्र नहीं षड्यंत्र होता था। आपके सामने ही आज क्या हुआ? सवेरे सरकार वेट कर रही थी कि टीवी वाले कब जाएं, सत्य सुनने का मादा नहीं। और ये लोग कब जाएं? कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बर्फ की डली नहीं है, पिघल जाएगा। खड़े हैं वो, आज भी खड़े हैं वो। दूसरी बात, नहीं, यहां आज की बात कर रहा हूं, पहले भी हुआ, छोड़ रहे हैं जी, मैंने कहा छोड़ दो। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं बारी मुख्यमंत्री कि जो सत्य की आवाज है वो बिल्कुल सही है। और मैं आज अपने छोटे भाई भगवंत मान को पूछना चाहता हूं, मैं उसको भगवंत मान को पूछना चाहता हूं कि बड़े दमगजे मारता था भाई तू, हैं? जब सत्ता में नहीं था तुझे किसी ने नहीं रोका, चुटकुले सुना, सपने बेचे तुमने, झूठ बेचा, तुमने पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया, और आज तुम एक अखबारी मुख्यमंत्री बन के रह गए हो, अखबारी मुख्यमंत्री। और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे। अरे सिद्धू एक मरवा दिया, तू दो और मरवा। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते। भगवंत मान की बात मैं कह रहा हूं ना, भगवंत मान साहब, मैं याद कराता हूं, 36,000 प्रोफेसर हरे पेन नाल आंदे ही पक्के करांगे। किथे गई स्याही, किथे गई मित्र प्यारे तेरी स्याही? ते जदों बिजली फ्री देण दी गल कीती सी, लोकां नूं दस्सिया सी भी कर्जा चुक के 25,000 करोड़ दा तू फ्री वंडेगा किसे नूं, ते ओ कर्जा किने मोड़ना मित्रा? ओ कर्जा पंजाब दे लोकां ने, जवाक जमदा 1 लाख करोड़ रुपए दा कर्जा हुंदा ओदे सिर ते अज तां तू लेटिया पिया सेंटर दी सरकार दे मूहरे। उदों तू चन्नी नूं कहंदा सीगा बीएसएफ क्यों आई, बीएसएफ क्यों खड़ी है इत्थे, किहड़ी डील करके आया?
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਖੜੀ ਹੈ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੀਐਸਐਫ ਖੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੀਸ ਲਹਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤਈਓ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਾਂਗੇ ਸੀਸ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੀਸ बरगाड़ी का इंसाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह लाया ਉਹਦੇ ਤੇ बरगाड़ी का इंसाफ 24 घंटे में हो जाएगा। पैसे सुन ले मित्रा तू मेरा छोटा भाई है भगवंत मान साहब मैं सोचदा ही तेरा शेर वर्गा दिल हो पर तू आज बड़ी छोटी गल की नवजोत सिद्धू ਲਈ मैं कोई गल नहीं तू मेरा छोटा भाई रहेगा हमेशा। सुन ले मित्र प्यारे 50,000 करोड़ किथे है किथे है केजरीवाल साहब ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢੂ ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂ 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲਤਾ ਰੇਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 3700 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ ਅੱਜ 12,000 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੈ ਲੂ ਸਾਰੀ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਜਟ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਧੂੜ 'ਚ ਯਾਰੋ ਤੂੰ ਟੱਟੂ ਉਡਾਇਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ 30 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੱਪ ਪਿਆ ਲੋਕ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਹੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣੀ ਆ वो सत्य सुनना नहीं चाहती अब मेरी बात सुने जब भी डिक्टेटरशिप क्रांति आई मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी और वो सरकार की जड़ें हिलाने मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस का वर्कर देखिए जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है और किस तरह से बर्फ की थैली नहीं है तो पिघल जाएगा लोकतंत्र बेड़ियों में मैं कोई नहीं ला रहा चीज नहीं रही कोई उसके लिए भी है आज लोकतंत्र बेड़ियों में पंजाब ढाल है इस देश की ढाल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है लोकतंत्र नहीं सेंटर की बड़ा हकी कोई आके उसे दबाने के प्रयास में क्योंकि कुछ किया नहीं दिखाने को कुछ नहीं फिर कहते हैं हमने शांत जाना तेरा पंजाब को कमजोर करके
नवजोत सिंह सिद्धू शांत रहा यार, शांत रहा 2 मिनट। 70-75 साल पहले राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो चट्टान की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो चट्टान की काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी आज लोकतंत्र की बेड़ियां काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह एक दहाड़ है, पूरे देश में दहाड़ है। उस सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब शेर दहाड़ता है तो अमेरिका, जर्मनी, पूरी दुनिया में वो आवाज हर तरह से गूंज रही है। डिबेट और डिसेंट ये डेमोक्रेसी के एसेंस हैं। एसेंस कि तुमसे अगर कोई रग नहीं मिलती तो वो पार्लियामेंट में बोलेगा और बताएगा। ऑपोजिशन का रोल है ये। तुम्हारे शब्दावली, अरे मेरे दोस्त, तुमने क्या क्या नहीं बोला। फिर तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई कोई। कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्रंथ मानता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इक्वालिटी, सबका साथ और सबका विकास। कहने को तो यह है, पर क्या किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंची है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे। लोगों की ताकत लोगों तक नहीं, चंग पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है दोस्त। तानाशाह। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, पूछो जो न्याय है। न्याय एक ऐसी संस्था है, न्याय की संस्था, इलेक्शनों की संस्था, इलेक्शन कमीशन है। जो उच्च न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी संस्था है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, पीछे हो मित्रा, कोई रोड़ा नहीं, अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी जो कर रहे हैं पंजाब च थोड़े बच्चे वाली कर रहे हैं मित्रा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, देही दाद लाऊं। नवजोत सिंह सिद्धू। संस्थाएं, ये संस्थाएं पवित्र थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं चलाती हैं उन वैल्यूज को। वो है कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। वो संस्थाएं आज गुलाम हैं। वो संस्थाएं आज 2 लोगों की सुनती है, 4 लोगों की सुनती है, 6 लोगों की सुनती है, ज्यादा नहीं। उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्डे बना दिया गया है। और वो रबड़ के गुड्डे चाबी देके छोड़ दिए गए हैं। मैं घबराता नहीं हूं, मौत से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं, मेरी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी, छुट्टी लेता तो ये नहीं होता। मैं आज भी इनमें भगवान देखता हूं। और मैं आपको कह रहा हूं, छाती पीछे चल, तो पासे हो। मैं आज भी कह रहा हूं कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। और आज अंबेडकर सर की फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हम परिवार हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर हैं हमारे, लेकिन हम परिवार की
एकता में बंधे हुए हैं, उस परिवार की एकता को तोड़ा जा रहा है और उस परिवार की एकता का रखवाला राहुल गांधी है। मैं चट्टान की तरह इस मुसीबत के टाइम में हर कांग्रेस के वर्कर के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। खड़ा रहूंगा उस्ताद। और दूसरी बात, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है पंजाब में। बताएं पंजाब के लिए क्या किया है? हैं? कुछ नहीं। राष्ट्र धर्म यही कहता है कि पंजाब के लोगों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये सत्य बोले जाएं। जहां जहां माइनॉरिटी है, जहां जहां हिंदुत्व का एजेंडा चलता नहीं, कश्मीर में मुस्लिम भाई मुख्यमंत्री बनता है, यहां सिख मेजॉरिटी में तो सिख मुख्यमंत्री बनता है। जहां जहां पंजाब के लोग कहते हैं पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, पंजाब जीवे गुरां दे नाम। और वो गुरुओं के नाम जीने वाला पंजाब, उसके परिवार को तोड़ा जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है, वोटों की पोलराइजेशन के लिए। मैं जिंदगी में एक बार मरूंगा, बार बार कायर मरते हैं, समझे नहीं? मुझे किसी भी जेल में डालो और मैं आज आपको कह रहा हूं, इतिहास गवाह है, 323 में आज तक 323 में किसी ने हफ्ता कैद नहीं काटी, हफ्ता कैद, और कभी आज तक रिव्यू नहीं हुआ। तो सिद्धू क्यों आया जेल में? एक मिनट, सिद्धू जेल में इसलिए आया कि वो संस्थाएं मेरे पूर्वजों ने स्थापित की थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया था, और वो संस्थाएं, उनकी इज्जत करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू इस जेल में आया, एक बार भी उफ नहीं की। हर रोज कोई ना कोई लोकतंत्र नहीं षड्यंत्र होता था। आपके सामने ही आज क्या हुआ? सवेरे सरकार वेट कर रही थी कि टीवी वाले कब जाएं, सत्य सुनने का मादा नहीं। और ये लोग कब जाएं? कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बर्फ की डली नहीं है, पिघल जाएगा। खड़े हैं वो, आज भी खड़े हैं वो। दूसरी बात, नहीं, यहां आज की बात कर रहा हूं, पहले भी हुआ, छोड़ रहे हैं जी, मैंने कहा छोड़ दो। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं बारी मुख्यमंत्री कि जो सत्य की आवाज है वो बिल्कुल सही है। और मैं आज अपने छोटे भाई भगवंत मान को पूछना चाहता हूं, मैं उसको भगवंत मान को पूछना चाहता हूं कि बड़े दमगजे मारता था भाई तू, हैं? जब सत्ता में नहीं था तुझे किसी ने नहीं रोका, चुटकुले सुना, सपने बेचे तुमने, झूठ बेचा, तुमने पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया, और आज तुम एक अखबारी मुख्यमंत्री बन के रह गए हो, अखबारी मुख्यमंत्री। और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे। अरे सिद्धू एक मरवा दिया, तू दो और मरवा। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते। भगवंत मान की बात मैं कह रहा हूं ना, भगवंत मान साहब, मैं याद कराता हूं, 36,000 प्रोफेसर हरे पेन नाल आंदे ही पक्के करांगे। किथे गई स्याही, किथे गई मित्र प्यारे तेरी स्याही? ते जदों बिजली फ्री देण दी गल कीती सी, लोकां नूं दस्सिया सी भी कर्जा चुक के 25,000 करोड़ दा तू फ्री वंडेगा किसे नूं, ते ओ कर्जा किने मोड़ना मित्रा? ओ कर्जा पंजाब दे लोकां ने, जवाक जमदा 1 लाख करोड़ रुपए दा कर्जा हुंदा ओदे सिर ते अज तां तू लेटिया पिया सेंटर दी सरकार दे मूहरे। उदों तू चन्नी नूं कहंदा सीगा बीएसएफ क्यों आई, बीएसएफ क्यों खड़ी है इत्थे, किहड़ी डील करके आया? ते हुण मैं तैनूं पुछदा भी सारे बार्डरां ते बीएसएफ खड़ी है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर बीएसएफ खड़ी है, सेंटर भी उन्ना जिम्मेवार है इस लॉ एंड ऑर्डर दा जिन्नी साडी सरकार, जिथे पक्ष लैण वाली गल है। दूसरा केजरीवाल साहब ते तू एक बीबी कहंदी सी शीश लहा देंगे 23 फसलों के उत्ते, MSP देंगे, शीश ला लियो। किथे शीश? बरगाड़ी दा इंसाफ
कैप्टन अमरिंदर सिंह लाया ਉਹਦੇ ਤੇ बरगाड़ी का इंसाफ 24 घंटे में हो जाएगा। पैसे पैसे सुन ला मित्रा, तू मेरा छोटा भाई है भगवंत मान साहब, मैं सोचदा ही तेरा शेर वर्गा दिल हो, पर तू अज बड़ी छोटी गल की नवजोत सिद्धू लई। मैं कोई गल नहीं, तू मेरा छोटा भाई रहेगा हमेशा। सुन लै मित्र प्यारे 50,000 करोड़ कित्थे है? कित्थे है केजरीवाल साहब जिहड़ा कहंदा 20,000 करोड़ रेते चों कढूं ते 30,000 करोड़ बजट चों कढ लूं, फिर पंजाब दे लोकां दे लाऊं। 2 रुपये नहीं कढे तुसीं कहने हो रेता लोकां लई खोलता, रेता अज भी ठेकेदारां लई खुला है। रेते दी ट्राली जदों कांग्रेस दी सरकार सी 3700 रुपये 3 सैकड़ा सी, अज 12,000 रुपये 3 सैकड़ा। किहड़ा गरीब ले लू? सारी रुक जूगी। फिर एक्साइज पॉलिसी तू कहदा सी कारपोरेशन बनावांगे, रेते दी कारपोरेशन बनावांगे, लख नौकरियां देंगे, बस कित्थे है बजट? कदे दस्सिया किसी नूं भी पैसे लिआएगा कित्थों? अखबारां 'च विकास कलाया, लोकां दा मूर्ख बनाया है जी। अखबारां 'च फोटोआं खिचाण तो एडवरटाइजमेंटां देण तो वेल नहीं मिलिया, धूड़ 'च यारो तू टट्टू उड़ाया है। एक गल सुन लो ध्यान नाल, पावर सेंट्रलाइज कर ली, 30 मिनिस्ट्रियां एक बंदे दे कोल ने, पंजाब दा विकास ठप पिया, लोग त्राही करते हैं, समझा नहीं? डॉक्टरां दी गल इन्हां नूं यही नहीं पता भी MLA हैं कि नहीं, जाके उत्थे हस्पतालां 'च खड़ जांदे आ, डॉक्टरां नूं गालां कढण लाइंदे आ। किहड़ा कानून बनाया मैनूं दस्सण? फिर कहना मैं इहनूं अंदर दे दूं, मैं उहनूं अंदर दे, ओ मैनूं दे, ओ मित्रा अंदर तूं जिथे देना है। मैं कहा जिन्नी मर्जी कर, जिहड़ा करप्ट है फिर उदों पैसे बरामद कर। की फायदा होया जे तू किसी नूं मैं तो माड़ा पाउणी आ वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने, जब भी डिक्टेटरशिप एक क्रांति आई, मैं कहता हूँ कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी, और वो इस सरकार की जड़ें हिलाने बंद करा। मैं आज भी कहता हूँ कि कांग्रेस का वर्कर देखिए जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है और किस तरह से बर्फ की थैली नहीं है जो पिघल जाएगा। लोकतंत्र बेड़ियों में कोई नहीं ला रहा, चीज नहीं रही कोई। उसके लिए भी है आज लोकतंत्र बेड़ियों में पंजाब ढाल है, इस देश की ढाल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है, जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, लोकतंत्र नहीं सेंटर बड़ा हाथी कोई आके उसे दबाने के प्रयास में, क्योंकि कुछ किया नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमने शांत जाना तेरा कमजोर करके शांत रहा यार, शांत रहा 2 मिनट। 70-75 साल पहले राहुल गांधी चट्टान की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू
मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो चट्टान की काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है, आज शेर की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था, उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी आज लोकतंत्र की बेड़ियां काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह एक दहाड़ है, पूरे देश में दहाड़ है। उस सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, और जब शेर दहाड़ता है तो अमेरिका, जर्मनी, पूरी दुनिया में वो आवाज हर तरह से गूंज रही है। डिबेट और डिसेंट ये डेमोक्रेसी के एसेंस हैं। एसेंस कि तुमसे अगर कोई रग नहीं मिलती तो वो पार्लियामेंट में बोलेगा और बताएगा। ऑपोजिशन का रोल है ये। तुम्हारे शब्दावली, अरे मेरे दोस्त, तुमने क्या क्या नहीं बोला। फिर तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई कोई। कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्रंथ मानता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इक्वालिटी, सबका साथ और सबका विकास। कहने को तो यह है, पर क्या किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंची है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे। लोगों की ताकत लोगों तक नहीं, चंग पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है दोस्त। तानाशाह। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, पूछो जो न्याय है। न्याय एक ऐसी संस्था है, न्याय की संस्था, इलेक्शनों की संस्था, इलेक्शन कमीशन है। जो उच्च न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी संस्था है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, पीछे हो मित्रा, कोई रोड़ा नहीं, अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी जो कर रहे हैं पंजाब च थोड़े बच्चे वाली कर रहे हैं मित्रा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, देही दात लाऊं। संस्थाएं, ये संस्थाएं पवित्र थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं चलाती हैं उन वैल्यूज को। वो है कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। वो संस्थाएं आज गुलाम हैं। वो संस्थाएं आज 2 लोगों की सुनती है, 4 लोगों की सुनती है, 6 लोगों की सुनती है, ज्यादा नहीं। उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्डे बना दिया गया है। और वो रबड़ के गुड्डे चाबी देके छोड़ दिए गए हैं। मैं घबराता नहीं हूं, मौत से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं, मेरी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी, छुट्टी लेता तो ये नहीं होता। मैं आज भी इनमें भगवान देखता हूं, और मैं आपको कह रहा हूं, छाती पीछे चल, तो पासे हो। मैं आज भी कह रहा हूं कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। और आज अंबेडकर सर की फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हम परिवार हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर हैं हमारे, लेकिन हम परिवार की एकता में बंधे हुए हैं। उस परिवार की एकता को तोड़ा जा रहा है, और उस परिवार की एकता का रखवाला राहुल गांधी है। मैं चट्टान की तरह इस मुसीबत के टाइम में हर कांग्रेस के वर्कर के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। खड़ा रहूंगा उस्ताद। और दूसरी बात,
इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है पंजाब में। बताएं पंजाब के लिए क्या किया है? हाँ? कुछ नहीं। राष्ट्र धर्म यही कहता है कि पंजाब के लोगों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये सत्य बोले जाएं। जहां जहां माइनॉरिटी है, जहां जहां हिंदुत्व का एजेंडा चलता नहीं, कश्मीर में मुस्लिम भाई मुख्यमंत्री बनता है, यहां सिख मेजॉरिटी में तो सिख मुख्यमंत्री बनता है। जहां जहां पंजाब के लोग कहते हैं पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, और वो गुरुओं के नाम जीने वाला पंजाब, उसके परिवार को तोड़ा जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है। वोटों की पोलराइजेशन के लिए मैं जिंदगी में एक बार मरूंगा, बार बार कायर मरते हैं, समझे नहीं? मुझे किसी भी जेल में डालो, और मैं आज आपको कह रहा हूं, इतिहास गवाह है, 323 में आज तक 323 में किसी ने हफ्ता कैद नहीं काटी, हफ्ता कैद, और कभी आज तक रिव्यू नहीं हुआ। तो सिद्धू क्यों आया जेल में? एक मिनट, सिद्धू जेल में इसलिए आया कि वो संस्थाएं मेरे पूर्वजों ने स्थापित की थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया था, और वो संस्थाएं, उनकी इज्जत करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू इस जेल में आया। एक बार भी उफ नहीं की। हर रोज कोई ना कोई लोकतंत्र नहीं, षड्यंत्र होता था। आपके सामने ही आज क्या हुआ? सवेरे सरकार वेट कर रही थी कि टीवी वाले कब जाएं, सत्य सुनने का मादा नहीं, और ये लोग कब जाएं? कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बर्फ की डली नहीं है, पिघल जाएगा। खड़े हैं वो, आज भी खड़े हैं वो। दूसरी बात नहीं, यहां आज की बात कर रहा हूं, पहले भी हुआ, छोड़ रहे हैं जी, मैंने कहा छोड़ दो। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं बारी मुख्यमंत्री कि जो सत्य की आवाज है वो बिल्कुल सही है। और मैं आज अपने छोटे भाई भगवंत मान को पूछना चाहता हूं, मैं उसको भगवंत मान को पूछना चाहता हूं कि बड़े दमगजे मारता था भाई तू, हैं? जब सत्ता में नहीं था तुझे किसी ने नहीं रोका, चुटकुले सुना, सपने बेचे तुमने, झूठ बेचा, तुमने पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया, और आज तुम एक अखबारी मुख्यमंत्री बन के रह गए हो, अखबारी मुख्यमंत्री। और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे। अरे सिद्धू एक मरवा दिया, तू दो और मरवा। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते। भगवंत मान की बात मैं कह रहा हूं ना, भगवंत मान साहब, मैं याद कराता हूं, 36,000 प्रोफेसर हरे पेन नाल आंदे ही पक्के करांगे। किथे गई स्याही, किथे गई मित्र प्यारे तेरी स्याही? ते जदों बिजली फ्री देण दी गल कीती सी, लोकां नूं दस्सिया सी भी कर्जा चुक के 25,000 करोड़ दा तू फ्री वंडेगा किसे नूं, ते ओ कर्जा किने मोड़ना मित्रा? ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੀਐਸਐਫ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਬੀਐਸਐਫ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਐ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਖੜੀ ਐ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੀਐਸਐਫ ਖੜੀ ਐ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੀਸ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤਈਓ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਸੀਸ ਲਾ ਲਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੀਸ? बरगाड़ी ਦਾ इंसाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह लाया ਉਹਦੇ ਤੇ, बरगाड़ी ਦਾ इंसाफ 24 घंटे में हो जाएगा। पैसे सुन ला मित्रा, तू मेरा छोटा भाई है भगवंत मान साहब, मैं सोचदा ही तेरा शेर वर्गा दिल हो, पर तू अज बड़ी छोटी गल कीती नवजोत सिद्धू ਲਈ। मैं कोई गल नहीं, तू मेरा छोटा भाई रहेगा हमेशा। सुन ला मित्र प्यारे 50,000 करोड़ किथे है? किथे है केजरीवाल साहब जेड़ा कहंदा 20,000 करोड़ रेते जो कढूं?
ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੂੰ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂ। 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲਤਾ। ਰੇਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 3700 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ 12,000 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ। ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੈ ਲੂ? ਸਾਰੀ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਜਟ? ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਧੂੜ 'ਚ ਯਾਰੋ ਤੂੰ ਟੱਟੂ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ, 30 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੱਪ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਹੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣੀ ਆ। वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। जब भी डिक्टेटरशिप एक क्रांति आई, आज मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी, और वो सरकार की जड़ें हिलाने बंद करा। मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस का वर्कर देखिए जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है और किस तरह से बर्फ की थैली नहीं है जो पिघल जाएगा। लोकतंत्र बेड़ियों में आज कोई नहीं ला रहा, चीज नहीं कोई उसके लिए भी है। आज लोकतंत्र बेड़ियों में पंजाब ढाल है, इस देश की ढाल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है, जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, लोकतंत्र नहीं सेंटर बड़ा हाथी कोई आके उसे दबाने के प्रयास में, क्योंकि कुछ किया नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमने शांत जाना तेरा पंजाब को कमजोर करके शांत रहा यार, शांत रहा 2 मिनट। 70-75 साल पहले राहुल गांधी जो चट्टान की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो चट्टान की काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं।
उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी आज लोकतंत्र की बेड़ियां काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह एक दहाड़ है, पूरे देश में दहाड़ है। उस सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब शेर दहाड़ता है तो अमेरिका, जर्मनी, पूरी दुनिया में वो आवाज हर तरह से गूंज रही है। डिबेट और डिसेंट, ये डेमोक्रेसी के एसेंस हैं। एसेंस कि तुमसे अगर कोई रग नहीं मिलती तो वो पार्लियामेंट में बोलेगा और बताएगा। ऑपोजिशन का रोल है ये। तुम्हारे शब्दावली, अरे मेरे दोस्त, तुमने क्या क्या नहीं बोला। फिर तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई कोई। कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्रंथ मानता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इक्वालिटी, सबका साथ और सबका विकास। कहने को तो यह है, पर क्या किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंची है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे। लोगों की ताकत लोगों तक नहीं, चंग पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है दोस्त। तानाशाह। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, पूछो जो न्याय है। न्याय एक ऐसी संस्था है, न्याय की संस्था, इलेक्शनों की संस्था, इलेक्शन कमीशन है। जो उच्च न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी संस्था है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, पीछे हो मित्रा, कोई रोवा नहीं। अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी जो कर रहे हैं पंजाब च थोड़े बच्चे वाली कर रहे हैं मित्रा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, देही दाते लाऊं। संस्थाएं, ये संस्थाएं पवित्र थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं चलाती हैं उन वैल्यूज को। वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। वो संस्थाएं आज गुलाम हैं। वो संस्थाएं आज 2 लोगों की सुनती है, 4 लोगों की सुनती है, 6 लोगों की सुनती है, ज्यादा नहीं। उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए, काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्डे बना दिया गया है। और वो रबड़ के गुड्डे चाबी देके छोड़ दिए गए हैं। मैं घबराता नहीं हूं, मौत से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं, मेरी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी, छुट्टी लेता तो ये नहीं होता। मैं आज भी इनमें भगवान देखता हूं। और मैं आपको कह रहा हूं, छाती पीछे चल, तो पासे हो। मैं आज भी कह रहा हूं कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। और आज अंबेडकर सर की फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हम परिवार हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर हैं हमारे, लेकिन हम परिवार की एकता में बंधे हुए हैं। उस परिवार की एकता को तोड़ा जा रहा है और उस परिवार की एकता का रखवाला राहुल गांधी है। मैं चट्टान की तरह इस मुसीबत के टाइम में हर कांग्रेस के वर्कर के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। खड़ा रहूंगा उस्ताद। और दूसरी बात, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है पंजाब में। बताएं पंजाब के लिए क्या किया है? हाँ? कुछ नहीं। राष्ट्र धर्म यही कहता है कि पंजाब के लोगों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये सत्य बोले जाएं। जहां जहां माइनॉरिटी है, जहां जहां हिंदुत्व का एजेंडा चलता नहीं, कश्मीर में मुस्लिम भाई मुख्यमंत्री बनता है, यहां सिख मेजॉरिटी में तो सिख मुख्यमंत्री बनता है,
जहां जहां पंजाब के लोग कहते हैं पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, और वो गुरुओं के नाम जीने वाला पंजाब, उसके परिवार को तोड़ा जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है वोटों की पोलराइजेशन के लिए। मैं जिंदगी में एक बार मरूंगा, बार बार कायर मरते हैं, समझा नहीं? मुझे किसी भी जेल में डालो, और मैं आज आपको कह रहा हूं, इतिहास गवाह है, 323 में आज तक 323 में किसी ने हफ्ता कैद नहीं काटी, हफ्ता कैद, और कभी आज तक रिव्यू नहीं हुआ। तो सिद्धू क्यों आया जेल में? एक मिनट, सिद्धू जेल में इसलिए आया कि वो संस्थाएं मेरे पूर्वजों ने स्थापित की थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया था, और वो संस्थाएं, उनकी इज्जत करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू इस जेल में आया, एक बार भी उफ नहीं की। हर रोज कोई ना कोई लोकतंत्र नहीं षड्यंत्र होता था। आपके सामने ही आज क्या हुआ? सवेरे सरकार वेट कर रही थी कि टीवी वाले कब जाएं, सत्य सुनने का मादा नहीं, और ये लोग कब जाएं? कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बर्फ की डली नहीं है, पिघल जाएगा। खड़े हैं वो, आज भी खड़े हैं वो। दूसरी बात, नहीं, यहां आज की बात कर रहा हूं, पहले भी हुआ, छोड़ रहे हैं जी, मैंने कहा छोड़ दो, हाँ? इसलिए मैं कहता हूं बारी मुख्यमंत्री कि जो सत्य की आवाज है वो बिल्कुल सही है, और मैं आज अपने छोटे भाई भगवंत मान को पूछना चाहता हूं, मैं उसको भगवंत मान को पूछना चाहता हूं कि बड़े दमगजे मारता था भाई तू, हैं? जब सत्ता में नहीं था तुझे किसी ने नहीं रोका, चुटकुले सुना, सपने बेचे तुमने, झूठ बेचा, तुमने पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया, और आज तुम एक अखबारी मुख्यमंत्री बन के रह गए हो, अखबारी मुख्यमंत्री। और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे। अरे सिद्धू एक मरवा दिया, तू दो और मरवा। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते। भगवंत मान की बात मैं कह रहा हूं ना, भगवंत मान साहब, मैं याद कराता हूं, 36,000 प्रोफेसर हरे पेन नाल आंदे ही पक्के करांगे। किथे गई स्याही, किथे गई मित्र प्यारे तेरी स्याही? ते जदों बिजली फ्री देण दी गल कीती सी, लोकां नूं दस्सिया सी भी कर्जा चुक के 25,000 करोड़ दा तू फ्री वंडेगा किसे नूं, ते ओ कर्जा किने मोड़ना मित्रा? ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੀਐਸਐਫ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਬੀਐਸਐਫ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਐ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਖੜੀ ਐ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੀਐਸਐਫ ਖੜੀ ਐ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੀਸ ਲਹਾ ਦੇਾਂਗੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਸੀਸ ਲਾ ਲਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੀਸ? बरगाड़ी ਦਾ इंसाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह लाया ਉਹਦੇ ਤੇ, बरगाड़ी ਦਾ इंसाफ 24 घंटे में हो जाएगा। पैसे सुन ले मित्रा, तू मेरा छोटा भाई है भगवंत मान साहब, मैं सोचदा ही तेरा शेर वर्गा दिल हो, पर तू अज बड़ी छोटी गल की नवजोत सिद्धू ਲਈ। मैं कोई गल नहीं, तू मेरा छोटा भाई रहेगा हमेशा। सुन ले मित्र प्यारे 50,000 करोड़ किथे है? किथे है केजरीवाल साहब ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢੂ ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੂੰ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂ। 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲਤਾ, ਰੇਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 3700 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ 12,000 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ। ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੈ ਲੂ? ਸਾਰੀ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ,
ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਾਂਗੇ। ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਜਟ? ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਧੂੜ 'ਚ ਯਾਰੋ ਤੂੰ ਟੱਟੂ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ, 30 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੱਪ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਹੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣੀ ਆ। वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। जब भी डिक्टेटरशिप एक क्रांति आई, आज मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी, और वो सरकार की जड़ें हिला दी। मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस का वर्कर देखिए जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है और किस तरह से बर्फ ठेली नहीं है। लोकतंत्र बेड़ियों में, बेड़ियों में कोई नहीं ला रहा, चीज नहीं रही कोई। उसके लिए भी है आज लोकतंत्र बेड़ियों में पंजाब ढाल है, इस देश की ढाल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है, जहां जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, लोकतंत्र नहीं। सेंटर उसे चबाने के प्रयास में, क्योंकि कुछ किया नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमने शांत जाना तेरा कमजोर करके शांत रहा यार, शांत रहा 2 मिनट। 70-75 साल पहले राहुल गांधी चट्टान की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो चट्टान की काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है, आज शेर की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी आज लोकतंत्र की बेड़ियां काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है।
आज शेर की तरह एक दहाड़ है, पूरे देश में दहाड़ है, उस सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब शेर दहाड़ता है तो अमेरिका, जर्मनी, पूरी दुनिया में वो आवाज हर तरह से गूंज रही है। डिबेट और डिसेंट ये डेमोक्रेसी के एसेंस हैं। एसेंस कि तुमसे अगर कोई रग नहीं मिलती तो वो पार्लियामेंट में बोलेगा और बताएगा। ऑपोजिशन का रोल है ये। तुम्हारे शब्दावली, अरे मेरे दोस्त, तुमने क्या क्या नहीं बोला, फिर तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई कोई। कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्रंथ मानता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इक्वालिटी, सबका साथ और सबका विकास। कहने को तो यह है, पर क्या किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंची है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे। लोगों की ताकत लोगों तक नहीं, चंग पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है दोस्त। तानाशाह। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, पूछो जो न्याय है। न्याय एक ऐसी संस्था है, न्याय की संस्था, इलेक्शनों की संस्था, इलेक्शन कमीशन है। जो उच्च न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी संस्था है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, पीछे हो मित्रा, कोई रोवा नहीं, अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी जो कर रहे हैं पंजाब च थोड़े बच्चे वाली कर रहे हैं मित्रा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, देही दाते लाऊं। संस्थाएं, ये संस्थाएं पवित्र थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं चलाती हैं उन वैल्यूज को। वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। वो संस्थाएं आज गुलाम हैं। वो संस्थाएं आज 2 लोगों की सुनती है, 4 लोगों की सुनती है, 6 लोगों की सुनती है, ज्यादा नहीं। उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्डे बना दिया गया है। और वो रबड़ के गुड्डे चाबी देके छोड़ दिए गए हैं। मैं घबराता नहीं हूं, मौत से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं, मेरी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी, छुट्टी लेता तो ये नहीं होता। मैं आज भी इनमें भगवान देखता हूं। और मैं आपको कह रहा हूं, छाती पीछे चल, हाथ पासे हो। मैं आज भी कह रहा हूं कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। और आज अंबेडकर सर की फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हम परिवार हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर हैं हमारे, लेकिन हम परिवार की एकता में बंधे हुए हैं। उस परिवार की एकता को तोड़ा जा रहा है और उस परिवार की एकता का रखवाला राहुल गांधी है। मैं चट्टान की तरह इस मुसीबत के टाइम में हर कांग्रेस के वर्कर के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। खड़ा रहूंगा उस्ताद। और दूसरी बात, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है पंजाब में। बताएं पंजाब के लिए क्या किया है? हैं? कुछ नहीं। राष्ट्र धर्म यही कहता है कि पंजाब के लोगों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये सत्य बोले जाएं। जहां जहां माइनॉरिटी है, जहां जहां हिंदुत्व का एजेंडा चलता नहीं, कश्मीर में मुस्लिम भाई मुख्यमंत्री बनता है, यहां सिख मेजॉरिटी में तो सिख मुख्यमंत्री बनता है। जहां जहां पंजाब के लोग कहते हैं पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, पंजाब जीवे गुरां दे नाम। और वो गुरुओं के नाम जीने वाला पंजाब, उसके परिवार को तोड़ा जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है, वोटों की पोलराइजेशन के लिए। मैं जिंदगी में एक बार मरूंगा, बार बार कायर मरते हैं, समझे नहीं? मुझे किसी भी जेल में डालो। और मैं आज आपको कह रहा हूं, इतिहास गवाह है, 323 में आज तक
323 में किसी ने हफ्ता कैद नहीं काटी, हफ्ता कैद, और कभी आज तक रिव्यू नहीं हुआ। तो सिद्धू क्यों आया जेल में? एक मिनट, सिद्धू जेल में इसलिए आया कि वो संस्थाएं मेरे पूर्वजों ने स्थापित की थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया था, और वो संस्थाएं उनकी इज्जत करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू इस जेल में आया। एक बार भी उफ नहीं की। हर रोज कोई ना कोई लोकतंत्र नहीं षड्यंत्र होता था। आपके सामने ही आज क्या हुआ? सवेरे सरकार वेट कर रही थी कि टीवी वाले कब जाएं, सत्य सुनने का मादा नहीं। और ये लोग कब जाएं? कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बर्फ की डली नहीं है, पिघल जाएगा। खड़े हैं वो, आज भी खड़े हैं वो। दूसरी बात नहीं, यहां आज की बात कर रहा हूं, पहले भी हुआ, छोड़ रहे हैं जी। मैंने कहा छोड़ दो, हाँ। इसलिए मैं कहता हूं हमारी मुख्यमंत्री कि जो सत्य की आवाज है वो बिल्कुल सही है। और मैं आज अपने छोटे भाई भगवंत मान को पूछना चाहता हूं, मैं उसको भगवंत मान को पूछना चाहता हूं कि बड़े दमगजे मारता था भाई तू, हैं? जब सत्ता में नहीं था तुझे किसी ने नहीं रोका, चुटकुले सुना, सपने बेचे तुमने, झूठ बेचा, तुमने पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया, और आज तुम एक अखबारी मुख्यमंत्री बन के रह गए हो, अखबारी मुख्यमंत्री। और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे। अरे सिद्धू एक मरवा दिया, तू दो और मरवा। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते। भगवंत मान की बात मैं कह रहा हूं ना, भगवंत मान साहब, मैं याद कराता हूं, 36,000 प्रोफेसर हरे पेन नाल आंदे ही पक्के करांगे। किथे गई स्याही, किथे गई मित्र प्यारे तेरी स्याही? ते जदों बिजली फ्री देण दी गल कीती सी, लोकां नूं दस्सिया सी भी करजा चुक के 25,000 करोड़ दा तू फ्री वंडेगा किसे नूं, ते ओ करजा किने मोड़ना मित्रा? ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੀਐਸਐਫ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਬੀਐਸਐਫ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਐ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਖੜੀ ਐ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੀਐਸਐਫ ਖੜੀ ਐ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੀਸ ਲਹਾ ਦੇਾਂਗੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਸੀਸ ਲਾ ਲਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੀਸ? बरगाड़ी ਦਾ इंसाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह लाया ਉਹਦੇ ਤੇ, बरगाड़ी ਦਾ इंसाफ 24 घंटे में हो जाएगा। पैसे सुन ले मित्रा, तू मेरा छोटा भाई है भगवंत मान साहब, मैं सोचदा ही तेरा शेर वर्गा दिल हो, पर तू आज बड़ी छोटी गल की नवजोत सिद्धू ਲਈ। मैं कोई गल नहीं, तू मेरा छोटा भाई रहेगा हमेशा। सुन ले मित्र प्यारे 50,000 करोड़ किथे है? किथे है केजरीवाल साहब ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢੂ ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੂੰ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂ। 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲਤਾ, ਰੇਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 3700 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ 12,000 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ। ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੈ ਲੂ? ਸਾਰੀ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਜਟ? ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਧੂੜ 'ਚ ਯਾਰੋ ਤੂੰ ਟੱਟੂ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ, 30 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ,
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਹੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣੀ ਆ। कि वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। जब भी डिक्टेटरशिप एक क्रांति आई, आज मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी, और वो सरकार की जड़ें हिलाने बंद करा। मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस का वर्कर देखिए जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है और किस तरह से करप्टी फैली नहीं है तो पिघल जाएगा। लोकतंत्र बेड़ियों में मैं कोई नहीं ला रहा, चीज नहीं रही कोई। उसके लिए भी है आज लोकतंत्र बेड़ियों में पंजाब ढाल है, इस देश की ढाल पर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है, जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, लोकतंत्र नहीं सेंटर की बड़ा हकी कोई आके क्या है। उसे दबाने के प्रयास में, क्योंकि कुछ किया नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमने शांत जाना तेरा कमजोर करके शांत रहा यार, शांत रहा 2 मिनट। 70-75 साल पहले राहुल गांधी जो चट्टान की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो चट्टान की काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है, आज शेर की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी आज लोकतंत्र की बेड़ियां काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह एक दहाड़ है, पूरे देश में दहाड़ है। उस सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, और जब शेर दहाड़ता है तो अमेरिका, जर्मनी, पूरी दुनिया में वो आवाज हर तरह से गूंज रही है। डिबेट और डिसेंट ये डेमोक्रेसी के एसेंस हैं। एसेंस कि तुमसे अगर कोई रग नहीं मिलती तो वो पार्लियामेंट में बोलेगा,
और बताएगा। ऑपोजिशन का रोल है ये। तुम्हारे शब्दावली, अरे मेरे दोस्त, तुमने क्या क्या नहीं बोला। फिर तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई कोई। कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्रंथ मानता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इक्वालिटी, सबका साथ और सबका विकास। कहने को तो यह है, पर क्या किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंची है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे। लोगों की ताकत लोगों तक नहीं, चंग पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है दोस्त। तानाशाह। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, पूछो जो न्याय है। न्याय एक ऐसी संस्था है, न्याय की संस्था, इलेक्शनों की संस्था, इलेक्शन कमीशन है। जो उच्च न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी संस्था है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, पीछे हो मित्रा, कोई रोक नहीं, अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी जो कर रहे हैं पंजाब च थोड़े बच्चे वाली कर रहे हैं मित्रा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, देही दाते लाऊं। संस्थाएं, ये संस्थाएं पवित्र थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं चलाती हैं उन वैल्यूज को। वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। वो संस्थाएं आज गुलाम हैं। वो संस्थाएं आज 2 लोगों की सुनती है, 4 लोगों की सुनती है, 6 लोगों की सुनती है, ज्यादा नहीं। उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्डे बना दिया गया है। और वो रबड़ के गुड्डे चाबी देके छोड़ दिए गए हैं। मैं घबराता नहीं हूं, मौत से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं, मेरी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी, छुट्टी लेता तो ये नहीं होता। मैं आज भी इनमें भगवान देखता हूं। और मैं आपको कह रहा हूं, छाती पीछे चल, हाथ पासे हो। मैं आज भी कह रहा हूं कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। और आज अंबेडकर सर की फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हम परिवार हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर हैं हमारे, लेकिन हम परिवार की एकता में बंधे हुए हैं। उस परिवार की एकता को तोड़ा जा रहा है और उस परिवार की एकता का रखवाला राहुल गांधी है। मैं चट्टान की तरह इस मुसीबत के टाइम में हर कांग्रेस के वर्कर के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। खड़ा रहूंगा उस्ताद। और दूसरी बात, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है पंजाब में। बताएं पंजाब के लिए क्या किया है? हाँ? कुछ नहीं। राष्ट्र धर्म यही कहता है कि पंजाब के लोगों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये सत्य बोले जाएं। जहां जहां माइनॉरिटी है, जहां जहां हिंदुत्व का एजेंडा चलता नहीं, कश्मीर में मुस्लिम भाई मुख्यमंत्री बनता है, यहां सिख मेजॉरिटी में तो सिख मुख्यमंत्री बनता है। जहां जहां पंजाब के लोग कहते हैं पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, पंजाब जीवे गुरां दे नाम। और वो गुरुओं के नाम जीने वाला पंजाब, उसके परिवार को तोड़ा जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है। वोटों की पोलराइजेशन के लिए मैं जिंदगी में एक बार मरूंगा, बार बार कायर मरते हैं, समझे नहीं? मुझे किसी भी जेल में डालो और मैं आज आपको कह रहा हूं, इतिहास गवाह है, 323 में आज तक 323 में किसी ने हफ्ता कैद नहीं काटी, हफ्ता कैद। और कभी आज तक रिव्यू नहीं हुआ। तो सिद्धू क्यों आया जेल में? एक मिनट, सिद्धू जेल में इसलिए आया कि वो संस्थाएं मेरे पूर्वजों ने स्थापित की थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया था। और वो संस्थाएं, उनकी इज्जत करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू इस जेल में आया, एक बार भी उफ नहीं की। हर रोज कोई ना कोई
लोकतंत्र नहीं षड्यंत्र होता था। आपके सामने ही आज क्या हुआ। सवेरे सरकार वेट कर रही थी कि टीवी वाले कब जाएं, सत्य सुनने का मादा नहीं। और ये लोग कब जाएं। कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बर्फ की डली नहीं है, पिघल जाएगा। खड़े हैं वो, आज भी खड़े हैं वो। दूसरी बात नहीं, यहां आज की बात कर रहा हूं। पहले भी हुआ, छोड़ रहे हैं जी। मैंने कहा छोड़ दो। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं हमारी मुख्यमंत्री कि जो सत्य की आवाज है वो बिल्कुल सही है। और मैं आज अपने छोटे भाई भगवंत मान को पूछना चाहता हूं। मैं उसको भगवंत मान को पूछना चाहता हूं कि बड़े दमगजे मारता था भाई तू, हैं? जब सत्ता में नहीं था तुझे किसी ने नहीं रोका। चुटकुले सुना, सपने बेचे तुमने, झूठ बेचा, तुमने पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया और आज तुम एक अखबारी मुख्यमंत्री बन के रह गए हो। अखबारी मुख्यमंत्री। और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे। अरे सिद्धू एक मरवा दिया, तू दो और मरवा। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते। भगवंत मान की बात मैं कह रहा हूं ना, भगवंत मान साहब, मैं याद कराता हूं 36,000 प्रोफेसर हरे पेन नाल आंदे ही पक्के करांगे। किथे गई स्याही, किथे गई मित्र प्यारे तेरी स्याही। ते जदों बिजली फ्री देण दी गल कीती सी, लोकां नूं दस्सिया सी भी करजा चुक के 25,000 दा 25,000 करोड़ दा तू फ्री वंडेगा किसे नूं। ते ओह करजा किने मोड़ना मित्रा? ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੀਐਸਐਫ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਬੀਐਸਐਫ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਐ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਖੜੀ ਐ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੀਐਸਐਫ ਖੜੀ ਐ। ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੀਸ ਲਹਾ ਦੇਾਂਗੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਸੀਸ ਲਾ ਲਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੀਸ? बरगाड़ी ਦਾ इंसाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह लाया ਉਹਦੇ ਤੇ। बरगाड़ी ਦਾ इंसाफ 24 घंटे में हो जाएगा। पैसे सुन ले मित्रा, तू मेरा छोटा भाई है भगवंत मान साहब। मैं सोचदा ही तेरा शेर वर्गा दिल हो, पर तू अज बड़ी छोटी गल की नवजोत सिद्धू ਲਈ। मैं कोई गल नहीं, तू मेरा छोटा भाई रहेगा हमेशा। सुन ले मित्र प्यारे 50,000 करोड़ किथे है? किथे है केजरीवाल साहब ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢੂ ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੂੰ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂ। 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲਤਾ। ਰੇਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 3700 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ 12,000 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ। ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੈ ਲੂ? ਸਾਰੀ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਜਟ? ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਧੂੜ 'ਚ ਯਾਰੋ ਤੂੰ ਟੱਟੂ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ, 30 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੱਪ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਹੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
मैं तो माड़ा पानी है कि वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। जब भी डिक्टेटरशिप एक क्रांति आई आज मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी और वो इस सरकार की जड़ें हिला दी। मैं आज भी कहता हूँ कि कांग्रेस का वर्कर देखिए जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है और किस तरह से बर्फ की थैली नहीं है जो पिघल जाएगा। लोकतंत्र बेड़ियों में मैं कोई नहीं ला रहा चीज नहीं रही कोई उसके लिए भी है। आज लोकतंत्र बेड़ियों में पंजाब ढाल है इस देश की ढाल पर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है लोकतंत्र नहीं सेंटर की बड़ा हाथी कोई आके उसे जमाने के प्रयास में क्योंकि कुछ किया नहीं दिखाने को कुछ नहीं फिर कहते हैं हमने शांत जाना तेरा कमजोर करके नवजोत सिंह सिद्धू शांत रहा यार, शांत रहा 2 मिनट। 70-75 साल पहले राहुल गांधी जो चट्टान की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे। उनके पूर्वजों ने इस देश को उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो चट्टान की काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी आज लोकतंत्र की बेड़ियां काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह एक दहाड़ है, पूरे देश में दहाड़ है। उस सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब शेर दहाड़ता है तो अमेरिका, जर्मनी, पूरी दुनिया में वो आवाज हर तरह से गूंज रही है। डिबेट और डिसेंट ये डेमोक्रेसी के एसेंस हैं। एसेंस कि तुमसे अगर कोई रग नहीं मिलती तो वो पार्लियामेंट में बोलेगा और बताएगा। ऑपोजिशन का रोल है ये। तुम्हारे शब्दावली, अरे मेरे दोस्त, तुमने क्या क्या नहीं बोला। फिर तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई कोई। कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्रंथ मानता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इक्वालिटी, सबका साथ और सबका विकास। कहने को तो यह है, पर क्या किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंची है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे।
लोगों की ताकत लोगों तक नहीं, चंग पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है दोस्त। तानाशाह। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, पूछो जो न्याय है, न्याय एक ऐसी संस्था है, न्याय की संस्था, इलेक्शनों की संस्था, इलेक्शन कमीशन है, जो उच्च न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी संस्था है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, पीछे हो मित्रा, कोई रोवा नहीं, अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी जो कर रहे हैं पंजाब च थोड़े बच्चे वाली कर रहे हैं मित्रा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, देही दाते लाऊं। संस्थाएं, ये संस्थाएं पवित्र थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं चलाती हैं उन वैल्यूज को, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। वो संस्थाएं आज गुलाम हैं। वो संस्थाएं आज 2 लोगों की सुनती है, 4 लोगों की सुनती है, 6 लोगों की सुनती है, ज्यादा नहीं। उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्डे बना दिया गया है और वो रबड़ के गुड्डे चाबी देके छोड़ दिए गए हैं। मैं घबराता नहीं हूं।